to help me with I have to share the screen. Yes, ma'am. So what do I do for that? Ma'am, in the bottom you can see, ma'am, there is a mic and then screen, Yeah, and then that is there. present now. We have Present now. Okay. There's in present. Then how do I share the screen? uh, Contents of your screen. So that is sharing. You have option of sharing. the option of sharing is there, but it is not highlighting. Okay, wait Earlier a minute. I was having some problem with sharing it actually. Okay, ma'am, let me check. वो मैम का शेयर नहीं हो पा. Because I was facing this trouble for a little while now. No, it is still not. Is it visible? It is not. मैम आप मेल कर दीजिए डिपार्टमेंट में, देन दे विल शेयर ऑन योर बिहाफ. Oh no, let me check first. Just wait for 5 minutes. Okay, I ma'am. will. I apologize to the students. Just wait for 5 minutes and let me just share it first because I am facing some technical issues. Okay. So just a minute. Can somebody tell me what else can I do? In present now, that thing is not being highlighted. The share screen is not being highlighted. मैम प्रेजेंट नाउ मैम आप सेलेक्ट करिए विंडो. Can you now? Can you see it? Is it visible now? मैम एस नो मैडम. नहीं, मेरे को तो दिखाई हो दे गया रहा है. मैम, Yes, हो ma'am. गया हो गया. यस मैम. Visible. Yes, Yes, ma'am. ma'am. Okay, are you visible now? Yes, ma'am. All right. Can you hear me? Yes, ma'am. Yeah. Okay. Now, good afternoon again, and I apologize for that. Now, Good please, I am Dr. Jatinder Kohli, as she has already introduced me. Thank you, ma'am. Now, I will be taking the topic is there. Can you see the topics, all of you? Please keep on interacting. Then only I would know whether I am able to make you understand or not. So the topic is sentence faults, modifiers, compound and complex sentence, punctuations, etc. So is it clear? Am I audible? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, Yes, ma'am. Now you can mute it and then I will just ma'am. Okay. Now first sorry. Ma'am, Ma'am, Hindi content में explain in Hindi I language. will once I start the lecture, because this is on writing technique only. I have to teach you English because those who have to write in English for that. So I will explain that to you. But this is only, I think, for the students who are going to write their thesis in English. Because these modifiers and these sentences and punctuations are the rules for writing in English. Is it clear? Okay, so now I will try to explain in Hindi. I will explain in Hindi also. Don't worry about it. I'll clear all your doubts. Now we'll begin with parts of speech. आप सबने parts of speech पहले पढ़ा हुआ है, स्कूल में पढ़ा हुआ है सभी लोगों ने. Now अब इसमें जब हम start करते हैं, no, it's okay. You can mute yourself because then others won't be able to hear. You can mute. Yes, ma'am. Now we will please mute all your microphones, all of you. We will do 8 parts of speech. So noun, pronoun, verb, adjective, adverb, preposition, conjunction and interjection. जब हम मैं बिल्कुल बिगनिंग से स्टार्ट कर रही हूँ क्योंकि ये ग्रामर के मॉडिफायर्स हैं जो आप लोगों को आने चाहिए. जैसे हमने नाउन पहले आप लोगों ने स्कूल से ही पढ़ा होगा, बट नाउ व्हेन यू आर राइटिंग इन योर थीसिस यू हैव टू सी दैट दिस is to be kept in mind while punctuation also. So noun means name. Now name can be of anything, person, place, thing or anything, and there are different kinds of nouns. We will quickly just revise them. Pronoun, जो हिंदी में हम सर्वनाम बोलते हैं, the words which are used in the place of noun. Then there are verbs.
वर्ब्स आर ऑल डूइंग वर्ड्स, है ना, क्रिया जो होती है, तो ट्रांजिटिव होती है, इंट्रांजिटिव होती है, ये सब आपको आता है, लेकिन मुझे आगे पढ़ाने के लिए ये क्लियर करना पड़ेगा। एडजेक्टिव, एडजेक्टिव्स आर द वर्ड्स जो मीनिंग को नाउन और प्रोनाउन, नाउन और प्रोनाउन के मीनिंग पर ऐड करते हैं। ओके, सो एडजेक्टिव को हिंदी में विशेषण बोलते हैं। एडवर्ब जो है वो क्रिया विशेषण होता है, वो वर्ब्स की मीनिंग को ऐड करते हैं। एडजेक्टिव और एडवर्ब में बहुत कंफ्यूजन स्टूडेंट्स करते हैं, छोटी क्लास से लेकर बड़े उस तक भी, राइटिंग में भी। एडजेक्टिव्स ओनली मॉडिफाई नाउन्स एंड प्रोनाउंस एंड एडवर्ब्स मॉडिफाई ओनली वर्ब्स। बहुत सारे इनके डिफरेंट काइंड्स ऑफ नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब होते हैं। प्रेपोजिशंस होते हैं जो शायद हिंदी में संबंध बोधक होते हैं, और ये हमारे इंडियन राइटर्स में, इंडियंस में प्रेपोजिशन सबसे ज्यादा गलत यूज करते हैं। ऑन, एट, इनटू, अबव, बिहाइंड, ओवर, अबव और ओवर को इंटरचेंजेबली यूज कर देंगे, इन, इनटू को कर देंगे। तो वो प्रेपोजिशंस भी प्रॉपर होने चाहिए, क्योंकि उससे मीनिंग सेंटेंस का चेंज हो जाता है। तो जो लोग इंग्लिश में अपनी थीसिस लिखेंगे, उनको ये बहुत केयरफुल रहना है कि अगर वो जो लैंग्वेज यूज कर रहे हैं, नॉट ऑल ऑफ देम आर फ्रॉम इंग्लिश बैकग्राउंड, बट स्टिल यू, इफ यू आर राइटिंग इन इंग्लिश, देन यू हैव टू बी वेरी केयरफुल कि जो मीनिंग आप, यू वांट टू पुट अक्रॉस, जो मीनिंग समझाना चाहते हैं, वो मीनिंग आप नहीं समझ, उसका अर्थ का अनर्थ नहीं हो जाएगा, जैसे हम आगे मॉडिफायर्स में देखेंगे। फिर कंजंक्शंस होते हैं। कंजंक्शंस होते हैं ऑल द जॉइनिंग वर्ड्स, चाहे वो वर्ड्स को ज्वाइन करें या सेंटेंसेस को ज्वाइन करें, तो वो सारे कंजंक्शंस होते हैं, एंड, बिकॉज, देयरफॉर। और फिर इंटरजेक्शंस होते हैं। इंटरजेक्शंस जो होते हैं, जो सडन जॉय, फियर को, अलास, हुर्रे, ये सब बोलते हैं। तो मेरा टॉपिक ही आपको एक्सप्लेन करने का पंक्चुएशंस एंड ऑल है, तो ये बिल्कुल उन्हीं स्टूडेंट्स के लिए है जो लोग इंग्लिश में लिखेंगे अपनी थीसिस। अदरवाइज ऑल्सो फॉर योर अदर कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स ऑल्सो दिस ग्रामर पोर्शन इज वेरी रेलेवेंट, सो डू अटेंड and do try to understand. Now, the entire English grammar can be summarized or can be divided under these 8 headings. जैसे कि noun है, तो नाउन के अंडर ही हम जेंडर पढ़ते हैं, और नाउन के अंडर ही हम नंबर पढ़ते हैं, सिंगुलर, प्लूरल, एक वचन, बहुवचन, या जेंडर, मस्कुलिन, फेमिनिन, न्यूटर जेंडर, कॉमन जेंडर, वो सब नाउन में आते हैं। और वर्ब में हम सारे टेंसेस पढ़ते हैं, और इंडियन स्टूडेंट्स को टेंसेस में भी बहुत प्रॉब्लम आती है, इसी में पार्टिसिपल्स वगैरह भी आते हैं। तो हमें ये 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच को बहुत अच्छे से समझना है, उसी के बाद आगे की राइटिंग हम कर सकते हैं। जब पार्ट्स ऑफ स्पीच तो आप सभी को आते होंगे, ऐसा मैं अज्यूम करती हूँ। उसके बाद में ये सेंटेंसेस की तरह हैं। सेंटेंसेस क्या होते हैं? जो आप अपने थीसिस में सेंटेंस लिखेंगे, यू हैव टू मेक श्योर कि आपका जो सेंटेंस है वो सिंपल सेंटेंसेस नॉर्मली हों। कई बार आपके रन ऑन सेंटेंसेस होते हैं, काफी लंबे चलते हैं, बहुत सारे सब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं, कई बार आप कोट्स लिखते हैं जिसमें कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस भी होते हैं। तो काफी सारे स्कॉलर्स को तो इनका मतलब पता होगा, इसको भी मैं आपको शॉर्ट में बता देती हूँ कि सेंटेंस को हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट में। तो सब्जेक्ट जो होता है वो कर्ता होता है, जिसके बारे में हम बात करते हैं, और प्रेडिकेट जो होता है, प्रेडिकेट में वर्ब और ऑब्जेक्ट दोनों होते हैं, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। तो आपकी जो सेंटेंस का स्ट्रक्चर बनता है वो S+V+O बनता है। अब आप लोग मुझे एक कोई भी जना अनम्यूट करके बताइए कि व्हाट पार्ट ऑफ द सेंटेंस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, सब्जेक्ट या वर्ब या ऑब्जेक्ट? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट। डू एवरीबडी एल्स एग्री कि सब्जेक्ट सबसे इंपॉर्टेंट है? मैम तीनों इम्पोर्टेंट होते नहीं, वो तो ठीक है, तीनों ही इंपॉर्टेंट होते हैं, लेकिन क्या चीज होती है जिसके बिना Subject, आप continuous, सेंटेंस नहीं बना सकते? वर्ब सब्जेक्ट से आप सेंटेंस बना सकते हो? वर्ब वर्ब।
यस, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होता है वर्ब, क्योंकि जब हम सिर्फ ये बोलते हैं गो, तो गो इन इटसेल्फ इज अ कंप्लीट सेंटेंस, बिकॉज गो का मतलब होता है जाओ, और इसमें सब्जेक्ट इनहेरेंट होता है, हिडन होता है, इम्प्लाइड होता है। तो वर्ब इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट विदाउट विच यू कैन नॉट फ्रेम अ सेंटेंस। अब जब हम सेंटेंस बनाते हैं तो सेंटेंस में जब हम सिर्फ गो या सिट या स्टैंड या रन ऐसे बोलते हैं तो वो वर्ब तो होता है, लेकिन उसमें सब्जेक्ट ऐसे इंप्लाइड होता है कि यू गो, यू सिट, यू रन। और प्रेडिकेट में ऑब्जेक्ट भी होता है। ऑब्जेक्ट बहुत जरूरी नहीं होता है, जैसे बर्ड्स फ्लाई अगर हम बोलते हैं तो उसमें ऑब्जेक्ट की कहीं जरूरत नहीं होती है। तो जब हमने नाउन प्रोनाउन वर्ब करा तो वर्ब ट्रांजिटिव, इनट्रांजिटिव वर्ब्स होते हैं। तो ट्रांजिटिव वर्ब्स वो होते हैं जो वर्ब्स ऑब्जेक्ट को नहीं लेते हैं। सो व्हेन वी से बेबीज लाफ या आई रन, तो वो इनट्रांजिटिव वर्ब्स होते हैं, उसमें ऑब्जेक्ट नहीं होता। और नॉर्मली ऑब्जेक्ट जो है वो व्हाट क्वेश्चन को आंसर करता है, व्हाट या whom। आई रोट हिम अ लेटर या आई गेव देम अ लेक्चर, तो किसको दिया, देम, और क्या दिया, लेक्चर। तो वो डायरेक्ट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाता है, व्हाट और whom को आंसर करता है। तो जो हमारे बेसिक सेंटेंस पैटर्न्स होते हैं वो इंग्लिश में जब आप थीसिस लिखते हैं, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट की हो, यू हैव टू बी वेरी केयरफुल वेयर यू हैव टू प्लेस द सब्जेक्ट और वर्ब और ऑब्जेक्ट, एंड दैट यू डू नॉट मेक फ्रेगमेंटेड सेंटेंस। टुकड़े टुकड़े वाला सेंटेंस नहीं होना चाहिए, उसमें प्रॉपरली सब्जेक्ट होना चाहिए, वर्ब होना चाहिए, ऑब्जेक्ट होना चाहिए, या सब्जेक्ट प्रॉपरली इंप्लाइड होना चाहिए। तो जब S प्लस V प्लस O, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट हम बोलते हैं, तो उसमें आपको ये ध्यान रखना है कि उसी के अकॉर्डिंग हमारा सिंपल, कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस बनते हैं। कोशिश करिए आपकी थीसिस में आप सिंपल सेंटेंसेस लिखें, लेकिन जैसे मैंने पहले बोला कि कई बार कोटेशंस भी हम यूज करते हैं, या कई बार हमारा जो एक्सप्लेनेशन का वे ऑफ एक्सप्लेनेशन है वो लंबा रन ऑन करता है, तब आप कंपाउंड सेंटेंसेस यूज कर सकते हैं। और कंपाउंड सिंपली वो सेंटेंस होते हैं जो दो को जोड़ते हैं, जो दो सिंपल सेंटेंसेस को बीच में से जोड़ते हैं, एंड, देयरफॉर, बट, जो हमने कंजंक्शंस पढ़े, जॉइनिंग वर्ड्स पढ़े, उनको लगा के जोड़ते हैं। तो कंपाउंड सेंटेंस भी लिखना तो इजी होता है थीसिस में, लेकिन कॉम्प्लेक्स जो सेंटेंसेस होते हैं वो थोड़े से, जैसे कि नाम है जटिल वाक्य, वो इसीलिए डिफिकल्ट होते हैं क्योंकि उसमें कनेक्टर्स नहीं होते, कनेक्टिव्स नहीं होते, जॉइनिंग वर्ड्स नहीं होते। तो आप उन सेंटेंसेस को कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बोलते हैं। और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस किसके बने हुए होते हैं, क्लॉजेस के बने हुए होते हैं, क्लॉजेस के। सेंटेंस का पार्ट ही फ्रेज होता है और सेंटेंस का पार्ट ही क्लॉज होता है। दोनों में डिफरेंस क्या होता है, फ्रेज एक छोटा पार्ट सेंटेंस का होता है जिसमें सब्जेक्ट प्रेडिकेट नहीं होता है, और क्लॉज एक सेंटेंस के जैसा होता है जो दूसरे सेंटेंस के साथ में जुड़ा हुआ होता है पर बिना कनेक्टर के। अगर वो कनेक्टर के साथ जुड़ता है तो वो कंपाउंड सेंटेंस होता है, और अगर वो बिना कनेक्टर के जुड़ता है तो वो कॉम्प्लेक्स होता है। इस बात को ध्यान रख लीजिए कि क्लॉज और फ्रेज में ये डिफरेंस है कि फ्रेज में सब्जेक्ट प्रेडिकेट नहीं होता है, और क्लॉज एक सेंटेंस में 2 या 3 क्लॉज या 4 क्लॉज भी हो सकते हैं, और वो ऐसे जुड़े नहीं होते कि बीच में कनेक्टर्स लगे, उनके बिगनिंग से ही जुड़ा हुआ होता है सेंटेंस का। आगे मैं आपको एग्जांपल्स बताऊंगी कि वो सेंटेंस का फॉर्मेट ही ऐसा होता है। तो इंग्लिश में, लिटरेचर में जब थीसिस लिखते हैं तो उसमें कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस बहुत सारे होते हैं, बाकी सब्जेक्ट में आप कंपाउंड सेंटेंस से काम चला सकते हैं। तो क्लॉजेस और फ्रेजेस ये अलग अलग तरह के होते हैं, इसको मैं वापस बाद में लूंगी। जो क्लॉजेस होते हैं ये एडजेक्टिव और एडवर्बियल और जिसका काम करते हैं, अगर नाउन का काम करते हैं तो वो नाउन क्लॉज है जो व्हाट को आंसर करता है। अगर एडजेक्टिव का काम करते हैं तो एडजेक्टिव क्लॉज है जो हाउ
कैसा को आंसर करता है, और जो एडवर्ब को आंसर करते हैं कहाँ, वेयर, व्हेन, हाउ, तो वो एडवर्बियल क्लॉज होते हैं। मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड्स में इनके डिफरेंसेस और इनके एग्जांपल्स बताऊंगी। तो आप यहां तक समझ लीजिए कि सिंपल, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स ये काइंड ऑफ सेंटेंसेस होते हैं, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट पार्ट्स ऑफ अ सेंटेंस होते हैं, और क्लॉजेस और फ्रेजेस भी पार्ट्स ही होते हैं। फ्रेज में सब्जेक्ट प्रेडिकेट नहीं होता, और क्लॉज में सब्जेक्ट और प्रेडिकेट दोनों होता है। यहां तक आप लोगों को समझ में आ गया? इज इट क्लियर? Yes, आप yes, ma'am. इतना समझ में आया? किसी को कुछ पूछना है यहाँ तक? Ma'am, phrase like for example, फॉर wake up एग्जाम्पल early जैसे in the कि morning. ही सिटिंग इन अ कॉर्नर, तो इन अ कॉर्नर प्रेपोजिशनल फ्रेज हो गया, है ना? तो जो जिसका काम करता है, जो हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़े हैं, वो पार्ट्स ऑफ स्पीच का जो वो काम करते हैं उसको बोलते हैं, वे उसी के नाम से होता है। प्रेपोजिशन है तो प्रेपोजिशनल ही फ्रेज हो जाएगा। अगर वो क्लॉज का काम कर, क्लॉज है और एडवर्ब का काम कर रहा है तो एडवर्बियल क्लॉज है। आगे मॉडिफायर्स में देखेंगे। अब ये जो मॉडिफायर्स हैं, इन मॉडिफायर्स में देखिए, मॉडिफायर क्या होता है? ये वर्ड्स होते हैं या फ्रेजेस होते हैं या क्लॉजेस होते हैं जो सेंटेंस में डिस्क्रिप्शन देते हैं, वो सेंटेंस के पार्ट्स ही होते हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं आपके थीसिस लिखने का। ये आपके मैकेनिक्स ऑफ राइटिंग में आती है। जब आप सिनॉप्सिस लिखेंगे, थीसिस लिखेंगे, तो जो लैंग्वेज का पार्ट है, क्या होता है कि थीसिस अगर इंग्लिश में लिखी जाती है या किसी भी लैंग्वेज में लिखी जाती है, अगर आपकी लैंग्वेज ठीक नहीं है, ग्रामेटिकली करेक्ट नहीं है, विच एवर लैंग्वेज यू आर राइटिंग इन, तो बहुत पुअर इंप्रेशन पड़ता है आपकी थीसिस का। आप बहुत अच्छे से अच्छा रिसर्च भी कर लेंगे, बट इफ यू आर नॉट एबल टू एक्सप्रेस it properly or write it in a proper grammatical sense, then it takes away from the beauty and from the content also. Sometimes the whatever you want to say does not come across properly if you are not writing in correct language. तो sentence का structure लिखना, करेक्ट स्ट्रक्चर लिखना बहुत जरूरी होता है, नहीं तो वो मीनिंग जो आप देना चाह रहे हैं, इट डज नॉट कम अक्रॉस स्ट्रांगली। आपने भी देखा होगा कि अगर लैंग्वेज बहुत अच्छे से लिखी है, अलग अलग तरह के लिखने की स्टाइल होती है, डिस्क्रिप्टिव होती है, नैरेटिव होती है, और बहुत सारे आप उसको इमोशनली भी उसको लिख सकते हैं, जो लिटरेचर में लिखा जाता है, किसी भी लिटरेचर में। और ये जो ये मॉडिफायर्स और ये सब आप पढ़ तो इंग्लिश में ही रहे हैं, लेकिन अगर जो हिंदी के भी स्टूडेंट्स हैं जिनको हिंदी में भी थीसिस लिखनी है, मोर और लेस ये सेम ही तरीका होता है, क्योंकि स्ट्रक्चर्स और मॉडिफायर्स मोर और लेस सेम होते हैं। तो इससे क्या होता है, जो ये मॉडिफायर्स होते हैं, ये आपके दिमाग में जो पिक्चर है, जो आप इमेजरी को ट्रांसफर करना चाहते हैं पेजेस पे, उसको वो आप मॉडिफायर्स के थ्रू ही कर सकते हैं। तो अब वो मॉडिफायर कोई वर्ड भी हो सकता है, वो मॉडिफायर कोई फ्रेज भी हो सकता है, और वो कोई क्लॉज भी हो सकता है। जैसे वर्ड देखिए, खाली वर्ड्स तो कोई भी वर्ड हो सकता है, कूल, इंटेलिजेंट, ही इज द क्लास हीरो, दे आर ऑल different types of words. Now in phrase, the moment Michael saw the ghost, the hair on his hands, तो ये जो phrase होता है on his hands, where, stood up, तो you have to be very care with prepositional phrases। अगर in बोल देंगे, into बोल देंगे, जैसे in का मतलब सिर्फ अंदर होता है, और into का मतलब होता है वो मूवमेंट होता है अंदर जाने का। since और for का जो डिफरेंस होता है, अगर वो डिफरेंसेस आपकी लैंग्वेज में नहीं आएगा तो आपका मीनिंग चेंज हो जाएगा। तो फ्रेजेस छोटे छोटे से पार्ट्स होते हैं सेंटेंसेस का, जिसका सब्जेक्ट प्रेडिकेट नहीं होता। और क्लॉज कैसे होता है? द गर्ल whom you spoke to a minute ago is dead. 1 minute, sorry. The girl whom you spoke to a minute ago is dead. अब ये जो है ना, the girl, और क्या है इसमें? whom you spoke to a minute ago. अब इसमें सेंटेंस क्या है? The girl is dead. ओके अब इसको यहाँ पर मॉडिफायर क्या लगाया है, और ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है,
तो ये एडजेक्टिव क्लॉज है। ये जो है whom you spoke to a minute ago, ये क्या है? कौन सी गर्ल, ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है, तो ये एडजेक्टिव क्लॉज है। सो ये मॉडिफाई, इसको मॉडिफायर भी बोलते हैं। तो इसको हम कैसे पंक्चुएशन लगाएंगे, उसको कैसे ब्रैकेट वाले पंक्चुएशन कॉमास में लगाएंगे, और कैसे इस डेट पे एक्सक्लेमेटरी मार्क लगाएंगे। और ये जो एक्सक्लेमेटरी मार्क है ये इंटरजेक्शन का होता है, विस्मय बोधक चिन्ह जहां पर लगाते हैं, ये विस्मय आदि जो इमोशंस हैं उनको डिस्क्राइब करता है। तो यहाँ पर हमने वो अलास और हुर्रे और और हे और ये वो वर्ड्स नहीं लगाए, यहाँ पर वो सेंटेंस ही एक्सक्लेमेटरी है। जो ये वाले वर्ड्स होते हैं अलास हुर्रे वगैरह, ये सारे वर्ड्स तो वो होते हैं जो एक्सक्लेमेशन उनके बाद में आता है, लेकिन यहाँ पर एक्सक्लेमेशन सेंटेंस के बाद में आया है, इसलिए ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। सो द गर्ल whom you spoke to a minute ago is dead। तो यहां पर ये क्लॉज के साथ में जो मॉडिफायर का काम यूज कर रहा है, इस तरह से हम अपने सेंटेंसेस उसमें लिखते हैं। अब ये जो मॉडिफायर्स होते हैं, ये हमारी राइटिंग को इमेजरी के साथ में दे ब्रीथ लाइफ इनटू सेंटेंसेस। क्योंकि इसमें ये जो एक ये सेंटेंस है, मतलब स्टीफन ड्रॉप्ड हिज फोर्क। So Stephen, what is this? This is dead sentence. Stephen dropped his fork. अब अगर हम इसको सिर्फ सिंपल सा ऐसे ही लिखते हैं तो उसमें कोई लाइफ नहीं है। And if you either define Stephen और यू डिफाइन फोर्क, और या ड्रॉप्ड को डिफाइन करते हो, जैसे स्टीफन हु स्टूड फर्स्ट इन द क्लास या स्टीफन हु इज क्लमजी, और ड्रॉप्ड का लिखेंगे कि ड्रॉप्ड क्लमजीली, या फोक को लिखेंगे अब मैनी टैंगल्ड फोक। मतलब जो भी आप इनके साथ में ऐड करेंगे वो मॉडिफायर होंगे। और स्टीफन ड्रॉप्ड हिज फोक में उसमें वो बात, वो मजा नहीं आता है जब तक कि हम इसमें मॉडिफायर्स नहीं लगाते हैं। अब ये है जैसे पुअर मनीष who just wanted a quick meal to get through his 3-hour biology lab accidentally dropped his fork on the cafeteria floor, gasping with disgust as a cockroach wiggled out of his cheese omelette, a sight requiring a year of therapy before Stephen could eat eggs again। अब इन्होंने यहाँ पर जो पहले वाले राइटर ने लिखा है, उसने खाली ये लिखा है, कोई भी नाम ले लीजिए, स्टीफन, मनीष और एनीबडी, हु ड्रॉप्ड हिज फोर्क। अब इस बात को जब हम थोड़े से डेकोरेटिव लैंग्वेज में लगाते हैं, थोड़ा सा उसको, थोड़ा जैसे हम प्लांट्स में भी हॉर्टिकल्चर लगा देते हैं, उसी तरह से हम यहाँ पर अगर उसको डेकोरेटिव लैंग्वेज में लिखते हैं या लैंग्वेज को थोड़ा सा एक्सटेंड करके लिखते हैं, इससे क्या होता है कि एक सेंटेंस जो आप ये लिख रहे हैं, इट बिकम्स लाइक नॉट वेरी इंटरेस्टिंग टू रीड। तो जब आप इसमें बहुत सारे, क्योंकि ऐसा लिखना नहीं है हमको, लेकिन हमने क्या किया है, इस सेंटेंस में बहुत सारे मॉडिफायर्स लगा देते हैं। जैसे मनीष के आगे तो या ये स्टीफन है, मनीष नाम चेंज हो गया, इसमें अगर आप पुअर लगा देते हैं तो वो उसका एडजेक्टिव उसको डिफाइन कर रहा है, उसको मॉडिफाई कर रहा है। और कौन सा मनीष? मनीष who just wanted a quick meal to get through his 3-hour biology lab, है ना, उसको क्विक मील लेना था, तो ये बता दिया है, ये मॉडिफाई कर रहा है कौन सा? मनीष। दो मॉडिफायर्स हो गए, पुअर और ये वाला। एंड देन फोक के साथ में हमने यहाँ पर उसका एडवर्ब यूज कर दिया एक्सीडेंटली। एक्सीडेंटली एडवर्ब यूज करके ड्रॉप्ड हिज फोक। ये एक्सीडेंटली किसको मॉडिफाई कर रहा है? ड्रॉप्ड को। ड्रॉप्ड क्रिया है, वर्ब है, और ये एडवर्ब लगा दिया, क्रिया विशेषण लगा दिया हमने, एक्सीडेंटली। फिर on the cafeteria floor, gasping with disgust as a cockroach wiggled out of his cheese omelette, मतलब उस ऑमलेट में से कॉकरोच निकल गया, एंड ही इज gasping, उसको बहुत गंदा लगा। और फिर उसके बाद में हमने उसको और भी बड़ा कर दिया, a sight requiring a year of therapy before Stephen could eat egg again। ये स्टीफन है, मनीष है, नाम बार बार चेंज हो रहा है। इसमें आप ये देखिए कि ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हो गया। इसमें जब हम एंड लगाते तो पुअर, ये जैसे एंड एंड अ साइट, अगर हम यहाँ एंड लगा देते तो ये कंपाउंड सेंटेंस हो जाता।
लेकिन यहाँ पर कहीं जॉइनिंग वर्ड्स नहीं लगाए हैं हमने, तो ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हो गया, ये जटिल वाक्य हो गया, और इसमें बहुत सारे क्लॉजेस लग गए हैं, कुछ फ्रेजेस लग गए हैं, और ये जो डेड सेंटेंस है मनीष ड्रॉप्ड हिज फोक, ये वाला सेंटेंस एक डेकोरेटिव, एक लिटरेरी उस सेंस में, एंड इट इज ड्रॉइंग अटेंशन टू इटसेल्फ, हमने उस सेंटेंस को बढ़ा दिया। और थीसिस के वैसे भी हमें कई कई बार होता है कि इस मैटर में ज्यादा कुछ नहीं है, हमें क्या लिखना है। सो दिस इज द वे how you can elongate it, how can you can extend it, and how you can modify it also. So this is one example of a modifier. Now what is the importance? अब ये जो हमने, ये जो मैंने अभी आपको पहले ही बता दिया, ये सारे मॉडिफायर्स हैं। देखो इसको अलग अलग यहाँ पर लिखकर मैंने बता दिया है, अभी आपको बताया भी था कि एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव क्लॉज है, एडवर्ब है, एडवर्ब क्लॉज है, एज अ कॉकरोच विगल्ड आउट, एब्सोल्यूट फ्रेज है, इन्फिनिटिव, इन्फिनिटिव क्या होता है, जो टू लगा के होता है, टू इन्फिनिटिव आप सब लोगों को पता ही होगा। और पार्टिसिपल भी आपको पता है, दे आर आईएनजी वर्ड्स होते हैं या थर्ड फॉर्म के ईडी वर्ड्स होते हैं, और ये ऑन द कैफेटेरिया फ्लोर प्रेपोजिशंस है। सो ये बिना मॉडिफायर के सेंटेंसेस आर नॉट फन टू रीड। ऐसे आप स्टोरी बुक्स में देखोगे, फिक्शन में देखोगे, नॉन फिक्शन में देखोगे, क्योंकि आप अपनी थीसिस को पब्लिश कराओगे बुक्स में, इट शुड होल्ड द अटेंशन ऑफ द रीडर्स। सो लैंग्वेज इज very important. It is very essential that you write proper language so that your meaning comes across well. It should be carefully chosen, well placed, and these modifiers, they allow you to depict situations with accuracy. Accuracy भी होता है और flowery language भी हो जाती है, decorative भी हो जाती है। अब अगर हम मॉडिफायर्स को रॉन्ग तरीके से लगाते हैं तो हमारा जो प्रॉब्लम है वो सब चीज चेंज हो जाती है। कैसे हो जाती है? मिसप्लेस्ड मॉडिफायर का देखो, कभी कई कई बार क्या होता है, जो वर्ड और फ्रेज और क्लॉज होते हैं वो प्रॉपरली नहीं होते, उससे बहुत इलॉजिकल सेंस क्रिएट हो जाता है। देखो अब ये क्या है, द यंग गर्ल was walking the dog in a short skirt. Do you see how wrong the sentence is? The meaning is wrong. बताएं, आपको लग रहा है ये गलत है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो ये गलत क्यों है? Not only because of the lack of punctuation. पंक्चुएशन तो है नहीं इसमें, लेकिन इसमें और भी क्या गलती है, इसमें स्ट्रक्चर को ऐसे बनाया है, इसमें इसको स्ट्रक्चर को हम ठीक करेंगे तो कोई बताएगा कैसे लिखेंगे? कोई बताइए इसको कैसे आप इस सेंटेंस का स्ट्रक्चर ठीक करेंगे मॉडिफायर को सही जगह लगा के? Please unmute one of you and tell me what would the correct sentence be? The young girl was in a short skirt with a dog. No. You don't have to. That is okay. That is one way of putting it. But you don't have to use extra words. Try to make the correct, meaningful sentence with this only. The young girl in a short skirt was walking the dog. Yes. The young girl, comma, in a short skirt, comma, was walking the dog. तो इससे क्या होता है, आपने हिंदी में भी देखा होगा कि कई बार ऐसे सेंटेंसेस होते हैं, अगर वो बिना पंक्चुएशन के लगाएंगे तो वो सेंटेंसेस, या हम उसके मॉडिफायर को गलत जगह लगाएंगे तो वो सेंटेंसेस भी रॉन्ग हो जाते हैं। अब ये भी जैसे एक सेंटेंस है, The dog was chasing the boy with the spiked collar. कॉलर क्या होता है, वो जो पट्टा लगाते हैं ना डॉग के, तो पट्टा किसके लिए लगा हुआ है, डॉग के। तो इसको हमने अगर ऐसे लिख दिया कि the dog was chasing the boy with the spiked collar, तो उससे क्या हो जाता है, ऐसे लगता है कि बॉय के कॉलर है, तो dog with the spiked collar was chasing the boy। तो आपके जो मेरे को टॉपिक दिया गया था लेक्चर का, वो मॉडिफायर्स का था।
तो मॉडिफायर्स के लिए हमें क्या चीज ध्यान रखना है कि एक तो सेंटेंस को अच्छा बनाने के लिए हमें प्रॉपर प्लेस पे मॉडिफायर लगाना है जिससे उसका मीनिंग रॉन्ग नहीं हो जाए, और मॉडिफायर्स के साथ में हम हमारे लैंग्वेज को इंटरेस्टिंग भी बना सकते हैं। अब इसमें देखो, द डॉग इजंट इन अ शॉर्ट स्कर्ट एंड द बॉय डजंट हैव अ स्पाइक कॉलर बिकॉज द मॉडिफायर इज मिसप्लेस्ड। We have to think for a minute before we get the intended meaning. ठीक है, अब ये हमने इसको ठीक कर दिया, ये तो आपने देख ही लिया। अब ये मिसप्लेस जो मॉडिफायर्स होते हैं ये ऑकवर्ड प्लेसमेंट होते हैं, और जो राइटर कहना चाहता है उससे डिफिकल्ट। जब आपकी थीसिस असेस होती है या आपकी लिखी हुई बुक्स या रिसर्च पेपर कोई और पढ़ते हैं तो उनको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना होता है लैंग्वेज पर, आपके कंटेंट पे लगाना होता है। तो अगर लैंग्वेज आपकी प्रॉपर नहीं होगी तो आपका कंटेंट विल नॉट कम अक्रॉस प्रॉपरली, क्योंकि वहां पर आप तो जैसे अगर हम लेक्चर दे रहे हैं या आप अपने पेपर को प्रेजेंट कर रहे हैं तब तो आप समझा सकते हैं कि आप क्या मीन कर रहे हैं, लेकिन व्हेन a person is reading your thesis, assessing your thesis or your research paper, the other readers are reading your research paper, so you have to be sure, you have to ensure that you bring across the meaning lucidly, very clearly. So to avoid them, place them as words as close as possible to what they describe. तो जब हम ये describing words लेते हैं हमें क्या करना है, जिस चीज को ये describe कर रहे हैं उसी के पास में इसको लिखना है। तो जैसे ये तो पार्टिसिपल्स होते हैं, ये जो आईएनजी और ईडी वाले होते हैं, तो ये है एंगर्ड बाय द फुटबॉल स्कोर, रोहन किक द टेलीविजन इन द लिविंग रूम। तो इसमें क्या मालूम कर रहा है कि एंगर्ड, दिस साउंड, रोहन इज एंगर्ड बाय द फुटबॉल स्कोर, उसको लग रहा है ना। तो Out of his anger. Yes, out of his anger he kicked. हाँ, तो इसमें क्या होता है, जो ही कर्व्ड एंड, अब इसमें भी देखो प्लेस एंड एडजेक्टिव, ये जो द लैंडस्केपर wrestled the old lawnmower, cuffed and choked through the long grass. अब ओल्ड लॉन मोअर कैन कफ एंड चोक, ये कैसे सेंस होता है, तो ये जो सेंसेस का जो मिसप्लेस हो जाता है उसको आपको ध्यान नहीं रखना है। अब ये देखो, ये कुछ सेंटेंसेस और भी हैं, हम इन सेंटेंसेस को एक एक करके लेंगे। जिन लोगों का इंग्लिश नहीं है मैं वापस से हिंदी में भी बताए मैम। मैम नमस्ते, हिंदी में भी बताए कुछ ऐसे उदाहरण। हिंदी में ऐसे उदाहरण बताऊं, आप ही लोग बताओ, कोई ट्राई करो, मैं बताती हूँ। तभी तो हमें समझ में आएगा। अब देखो, हिंदी तो मेरा सब्जेक्ट नहीं है ना, मैं बताती हूँ, देखो सोच के बताती हूँ। हिंदी वाले क्या करेंगे? नहीं, क्या करेंगे नहीं, अब ये तो आप उनको बोलो ना, हिंदी में भी ऐसा लेक्चर कराएंगे। मैं तो इंग्लिश की प्रोफेसर हूँ, मैं कोशिश करती हूँ, एक दो अभी मिलकर ही सोचते हैं ना। एक मिनट अभी देखते हैं, मैं थोड़ा सा ये लेक्चर और करूं आगे, फिर हम जब अभी इंटरेक्ट करेंगे तो हम सब मिलकर सोचते हैं, ठीक है। हिंदी में भी बताती हूँ मैं। अब ये देखिए, ये जैसे द पेशेंट टॉक्ड अबाउट हिज चाइल्डहुड ऑन द साइकियाट्रिस्ट काउच, ये इसमें क्या गलती हो सकती है बताएंगे आप? The patient on the psychiatrist couch talked about his childhood. हाँ, क्योंकि हम किसको मॉडिफाई कर रहे हैं यहाँ पर, पेशेंट को, इसीलिए यहाँ पर हम ऑन द साइकियाट्रिस्ट काउच पहले लगाएंगे। फिर ये जो है, द क्राउड वॉच्ड द टेनिस प्लेयर विद स्विलिंग हेड्स, तो यहाँ पर क्या होगा, द क्राउड को मॉडिफाई कर रहा है स्विलिंग, स्विलिंग मतलब घुमा के, सर घुमा के, तो वो यहाँ पर क्राउड के साथ में आएगा। अब ये रोनी पुट 4 burgers ऑन द काउंटर विच शी वॉज कुकिंग फॉर डिनर, तो अब यहाँ पर रोनी पुट बर्गर्स ऑन द काउंटर, काउंटर नहीं हो रहा है कुकिंग फॉर डिनर में, आप समझ रहे हैं, इससे सारी जो सेंटेंसेस है वो गलत हो जाती है। सोहेल केयरफुली hung the new suit that he would wear to his first job interview in the bedroom closet. अब इसका क्या मतलब है कि सोहेल ने अपना नया सूट को केयरफुली हैंग किया और वो अपना उसको फर्स्ट जॉब इंटरव्यू में पहन के जाएगा, और वो उसने उसको सूट को कहाँ हैंग किया है, बेडरूम की अलमीरा में, बेडरूम की अलमारी में। लेकिन यहाँ पर कैसे लग रहा है, जैसे फर्स्ट जॉब
इंटरव्यू कहाँ पर हो रहा है? बेडरूम की अलमीरा में। तो ये यहाँ पर So गलत लगा। after hung in the bedroom आएगा. Hung the new suit. No. Hung the new suit in the bedroom So है closet. carefully hung the new suit. हाँ, in the bed. है ना? Yes, ma'am. bed, After, ma'am. हाँ, तो फिर ऐसे आएगा। और फिर ये है अनीता ripped the shirt on a car door that she made in a sewing class. अब कार डोर थोड़ी उसने कोई सिलाई की क्लास में बनाया था, शर्ट बनाया था ना, तो ये भी यहाँ पर गलत हो जाता है। और न्यूज़कास्टर spoke softly into a microphone wearing a bulletproof vest. अब यहाँ पर क्या है? The newscaster spoke softly into microphone. Microphone is not wearing a bulletproof vest. ठीक है, तो ये न्यूज कास्टर इज वेयरिंग इट। आप, मुझे समझ में आ रहा है कि जो हिंदी वाले स्टूडेंट्स हैं उनको भी बताएंगे। अभी मैं कोशिश करती हूँ आपको ऐसे वाले सेंटेंसेस सोच के बताने की। अभी आप इसमें कोई इतना डिफिकल्ट नहीं है कि आपको ये भी बात समझ में नहीं आएगी जो मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि मीनिंग का डिफरेंस कैसे हो जाता है अगर हम मॉडिफायर गलत जगह लगाते हैं। अब he nearly ate a whole box of trees. Big dog almost ran around the yard 20 times. तो ये nearly, even, almost, hardly, ये सारे जो एडवर्ब के वर्ड्स होते हैं इसको भी हम गलत गलत यूज करते हैं। ऑफ्टन क्या होता है? नियरली होता है, ऑलमोस्ट होता है। इन सबको हम कैसे यूज करते हैं, इनके यूसेज को भी हमें ध्यान रखता होता है। इसको आप देखिए, जैसे ये लिखा है I nearly napped for 20 minutes, मतलब ऑलमोस्ट मैंने, इसका मतलब तो वही होता है कि ऑलमोस्ट, है ना? देखो डिफरेंस कैसे होता है। I napped for nearly 20 minutes, I nearly napped। अब nearly nap थोड़ी है, nearly मतलब 20 मिनट के आसपास, है ना? नो, दैट इज राइट, ऑलमोस्ट तो होता है। नहीं, नियरली भी होगा, नियरली भी सही है, लेकिन नियरली नैप नहीं होगा। नियरली 20 मिनट्स के लिए नैप लिया है ना, तो उसको हम ऐसे लिखेंगे आई नैप्ड। नैप मतलब होता है छोटी झपकी लेना, मतलब झपकी लेना, सोना, है ना? तो आई नैप्ड फॉर नियरली 20 मिनट्स। तो हमने नियरली यहां लगा दिया तो नियरली नैप्ड के साथ में रॉन्ग हो जाता है। अब ये जो 3, 4 और 5 सेंटेंस है इसको देखिए, इसको हिंदी वाले भी देख सकते हैं क्योंकि उनको भी ये बात समझ में आ जाएगा। ओनली नेहा रीड्स दैट बुक। इसका मतलब क्या होता है कि सिर्फ नेहा उस बुक को पढ़ेगी। फिर ये होता है नेहा ओनली रीड्स दैट बुक, मतलब कि नेहा सिर्फ वो बुक ही पढ़ती है। और नेहा रीड्स ओनली दैट बुक, कि नेहा खाली उस she is not reading other books, only that particular book yes, she is not reading। तो इसमें हिंदी इंग्लिश की तो कोई बात ही नहीं है ना। हिंदी में भी तो हम ऐसे बोलते हैं कि सिर्फ वही किताब पढ़ती है या नेहा वही किताब सिर्फ पढ़ेगी। तो जब हम ये ओनली को अलग अलग जगह लगाते हैं, तीनों सेंटेंस वर्ड खाली ओनली है ना, वर्ड खाली ओनली है। ओनली को जब हम अलग अलग यूज करते हैं तो तीनों सेंटेंस का मीनिंग अलग हो जाता है। और इसको हम इंग्लिश में एक्सेंट भी बोलते हैं, स्ट्रेस भी बोलते हैं, क्योंकि ये खाली सिर्फ बोलने में नहीं होता है, ये ये सिर्फ लिखने में नहीं होता है, ये बोलने में भी होता है। जैसे हम बोले कि आई एम योर फ्रेंड, अगर मैं ऐसे बोलती हूँ आई एम योर फ्रेंड, तो मैं स्ट्रेस करके बोलती हूँ आई एम योर फ्रेंड। तो उसमें क्या होता है, मैं किस पे जोर दे रही हूँ? आई पे, मतलब कि मैं तुम्हारी फ्रेंड हूँ, फ्रेंड। और अगर मैं बोलूं कि आई एम योर फ्रेंड, तो मेरा स्ट्रेस किस पर है? योर पे है, कि मैं तुम्हारी दोस्त हूँ और किसी की नहीं। एंड आई एम योर फ्रेंड, जब फ्रेंड पे स्ट्रेस करते हैं, दोस्त, मैं तुम्हारी दोस्त हूं, तो मतलब भाई दुश्मन नहीं हूं, दोस्त हूं। तो वो इंटोनेशन और स्ट्रेस और एम्फसिस वो सब हम बोलने में जब लगा सकते हैं, तो रिटन में हम कैसे लिखेंगे? तो राइटिंग में लिखने के लिए हमें ऐसे वर्ड्स को सही तरीके से प्लेस करना पड़ेगा, क्योंकि बोल के तो आप बता सकते हैं, राइटिंग में अगर आप मॉडिफायर को सही जगह नहीं लगाएंगे तो उसका मीनिंग चेंज हो जाएगा। जैसे आप 3, 4 और 5 में देखिए, ये हिंदी में भी ऐसे ही है, गलत जगह पर लगाने से सिर्फ को मीनिंग डिफरेंट हो जाएगा। ओके, नाउ
डैंगलिंग मॉडिफायर्स देखिए. नाउ हैविंग बीन थ्रोन इन द एयर, द डॉग caught the stick or smashed flat by the passing truck. Big dog sniffed at what was left of a half-eaten burger. ये सेंटेंस देखिए, हैविंग बीन थ्रोन इन द एयर, है ना. ये क्या किया है, ये डैंगलिंग. डैंगलिंग मतलब लटका हुआ. अब ये लटका हुआ, ये जो सेंटेंसेस होते हैं ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस होते हैं. किसको हवा में फेंका है? डॉग को नहीं फेंका है, स्टिक को फेंका है. और यहाँ पर जो स्मैश हो गया है, जो दब गया है ट्रक के पहिए से, वो डॉग नहीं हुआ है, वो बर्गर हुआ है, हाफ ईटन बर्गर हुआ है. लेकिन ऐसे लिखने पे उल्टा लग रहा है कि डॉग के साथ में यहाँ ऐसा हो गया है, डॉग को हवा में उछाला है, या डॉग दब गया है पहिए के नीचे. तो ये मीनिंग चेंज हो जाता है आईएनजी में. अब जैसे ये है, द चिल्ड्रन एट बनाना स्प्लिट्स आइसक्रीम ड्रिपिंग विद हॉट चॉकलेट एंड व्हिप्ड क्रीम. बच्चे ने बनाना आइसक्रीम खाई, चॉकलेट उसमें से पिघलते हुए, चॉकलेट और क्रीम पिघलते हुए. अब बच्चा चॉकलेट और क्रीम के साथ में नहीं पिघल रहा है, पिघल कौन रहा है? आइसक्रीम पिघल रहा है. तो ये जो आईएनजी वाले वर्ड्स होते हैं, उनका जो पार्टिसिपल्स होते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल्स होते हैं, जो टेंसेस का फॉर्म होता है, उसको हमें सही तरीके से लगाना होता है, नहीं तो उसका भी अर्थ का मीनिंग, अर्थ जो है वो चेंज हो जाता है. अब ये देखिए, इसको अगर हम करेक्ट करते हैं, डांसिंग ऑन देयर हाइंड लेग्स, जो पीछे वाले जो लेग्स है उन पे डांस करते. द ऑडियंस चीयर्ड वाइल्डली एज द एलिफेंट्स पैरेडेड बाय. अब डांस कौन कर रहा है? एलिफेंट्स कर रहे हैं. लेकिन ये क्या बता रहे हैं कि अपने पिछली टांगों पर नाचते हुए ऑडियंस ने बहुत चीयर कर रहे हैं, और एलिफेंट्स जो है वो वहां से परेड पे निकल रहे हैं, वो जा रहे हैं. अब ऑडियंस इज नॉट डांसिंग ऑन द लेग्स, एलिफेंट्स और अपने दो पैर पे खड़े होके नाच रहे हैं, और ऑडियंस चीयर कर रही है. तो हम इसको यहाँ पर who is dancing on the audience cheered wildly as dancing on their hind legs elephants paraded by. समझ में आया आपको ये? The audience cheered wildly, ये पहले आएगा. As dancing on their hind legs the elephants paraded by. समझ में आ गया आप लोगों को? यस मैम. बट मैम वो स्ट्रक्चर प्रॉपर नहीं लग रहा, लास्ट में बाय आया इसलिए. Yes, ma'am. नहीं, हाँ बिल्कुल सही बोल रहे हो ना. यही तो बोल रही हूँ मैं कि ये गलत है. दिस इज रॉन्ग. बाय आया, और लेकिन हम ऐसे सेंटेंसेस लिखते हैं. ये जो बाय को हम यहाँ पर लगाते हैं, ये फ्रेगमेंटेड सेंटेंसेस होते हैं विच आर एक्सेप्टेबल इन इंग्लिश. और आप उसको बाद में भी लगा सकते हैं. दूसरा ट्राई करके देखो. द ऑडियंस चीयर्ड वाइडली एज द एलिफेंट्स पैरेडेड बाय. तो डांसिंग ऑन देयर हाइंड लेग्स आप नहीं लगा सकते, तो लास्ट में पैरेडेड बाय ही होगा, क्योंकि बाय के बाद में आप डांसिंग ऑन देयर हाइंड लेग्स नहीं लगा पाएंगे. बट यू कैन एंड योर सेंटेंस विद बाय ऑल्सो. नाउ सी, व्हेन वी डू दीज मॉडिफायर्स, तो मॉडिफायर में अगर हमने सेंटेंस ऐसे ही बनाया है, सेंटेंस का स्ट्रक्चर ऐसा ही बनाया है, तो भी हम क्या करेंगे? पंक्चुएशन को प्रॉपरली करेंगे. अगर पंक्चुएशन की वो सिंबल्स हम सही जगह से लगाते हैं, तो उससे क्या होता है, जो मीनिंग है वो डिसएम्बिगुएट हो जाता है, उसमें एम्बिगिटी नहीं रहती, उसमें अनक्लियर नहीं रहता, उसमें डाउट नहीं रहता है, उसमें उसको उसका मीनिंग को हम प्रॉपरली ला सकते हैं अगर बीच बीच में हम पंक्चुएशन मार्क्स लगा देते हैं. और पंक्चुएशन मार्क्स मुझे लगता है हिंदी इंग्लिश के सेम ही होने चाहिए, जो रिटन लैंग्वेज में आप लगाएंगे. जैसे ये देखिए, लेट्स ईट ग्रैंडपा, लेट्स ईट ग्रैंडपा. दोनों में क्या डिफरेंस है? पंक्चुएशन कॉमा लगा है ना, ये कॉमा अल्प विराम लगा है यहाँ पर ये पूर्ण विराम जो होता है, जिसको पीरियड बोलते हैं इंग्लिश में, पीरियड, फुल स्टॉप. इसको पीरियड भी बोलते हैं, इसको फुल स्टॉप भी बोलते हैं. अब दोनों में क्या डिफरेंस हो गया? लेट्स ईट ग्रैंडपा, तो इसका ये मतलब निकल रहा है हम सब मिलकर ग्रैंडफादर को खा जाते हैं. और अगर यहाँ पर बोलते हैं लेट्स ईट ग्रैंडपा, हम ग्रैंडपा से बोल रहे हैं कि चलो खाना खाते हैं.
तो ये कॉमा लगने से इसके मीनिंग में डिफरेंस आ गया। तो पंक्चुएशन के जो मार्क्स होते हैं और जो इंग्लिश में करेंगे उनको ये देखना है कि हमारी एमएलए हैंडबुक होती है उसमें ये पंक्चुएशन का थीसिस में कैसे लगाते हैं। ये दूसरे जो सोशल साइंसेस या ह्यूमैनिटीज वाले जो स्कॉलर्स होते हैं वो भी उसको रेफर कर सकते हैं। 9th एडिशन है एमएलए हैंडबुक का, उसमें आपको बिल्कुल क्लियरली बताया है कि आपको रेफरेंसेस कैसे देने हैं, आपको पंक्चुएशंस कैसे लगाने हैं। अब ये देखिए, ये पंक्चुएशन का पार्ट देखिए। अब वुमन विदाउट हर मैन इज नथिंग, ठीक है। इस सेंटेंस का एक औरत बिना उसके हस्बैंड के या मैन के इज नथिंग, ओके, चाहे फादर हो, ब्रदर हो और हुसोएवर द मैन इन हर लाइफ। अब इसमें क्या है, अ वुमन विदाउट हर मैन इज नथिंग। और अगर हम ऐसे करें, अ वुमन विदाउट हर मैन इज नथिंग, आप देख रहे हैं कि ये क्या है, एक सेंटेंस को मेल्स ने कैसे लिखा, अ वुमन विदाउट हर मैन इज नथिंग, मतलब मैन की importance। और इसमें यहाँ After her, we just put the comma, then meaning is changed. अ वुमेन विदाउट हर, तो फिर मैन इज नथिंग यहाँ पर आ गया। और जब हम ऐसे बीच में क्लॉजेस देते हैं ना, तो हम सेमीकोलन, सॉरी कोलन लगाते हैं। जो 2 डॉट्स लगे हैं ना, ये कोलन लगाते हैं। तो अ विमेन, उसको हम डिस्क्राइब कर रहे हैं, विदाउट हर मैन इज नथिंग। तो यहाँ पर मीनिंग में, यहाँ पर कौन इंपॉर्टेंट हो गया, विमेन, और इस सेंटेंस में कौन इंपॉर्टेंट हो गया, मैन। तो आपने ये पावर ऑफ पंक्चुएशन देखिए, एक कॉमा लगा देने से, एक कॉमा सही प्लेस पे लगा देने से उसका मीनिंग चेंज हो गया। यहां पर हो जाता है मैन इंपॉर्टेंट, यहां पर हो जाता है वुमेन इंपॉर्टेंट, मैन इज नथिंग। यहां हमने हर के बाद कॉमा लगाया, यहां हमने मैन के बाद कॉमा लगाया, और पूरा मीनिंग चेंज हो गया। तो आपकी राइटिंग का पूरा सेंस ही चेंज हो जाता है पंक्चुएशन मार्क से। अब पंक्चुएशन मार्क्स तो हिंदी इंग्लिश में सेम ही होते हैं, उसको बोलते अलग अलग है। जैसे ये फुल स्टॉप होता है, एलिप्सिस होता है, एलिप्सिस होता है जो 3 डॉट्स होते हैं, है ना, एलिप्सिस होता है जहाँ 3 डॉट्स होते हैं। कॉमा होता है, कॉमा में आपको पता है कॉमा तो ऐसे कॉमा हो जाता है, एलिप्सिस में आपको ऐसे वो लगा देते हैं डॉट डॉट डॉट, एलिप्सिस में 3 ही डॉट लगाते हैं। एलिप्सिस क्या होता है, अभी मैं जब अभी कराती हूँ तब The बताती हूँ। thing will be completed in the next line. यस, अब ये देखो, ये कोलन हो गया, कोलन ऐसे होता है, और ये सेमाई कोलन होता है या सेमी कोलन बोलते हैं हम जिसको। क्वेश्चन मार्क आपको पता ही है, क्वेश्चन मार्क सभी को पता है, हिंदी हो इंग्लिश हो किसी भी हो। एक्सक्लेमेशन मार्क में भी आपको मालूम है, एक्सक्लेमेशन जो है वो इंटरजेक्शन वाले मार्क्स होते हैं। कोटेशन मार्क्स भी पता है आपको, कोटेशन मार्क्स जो होते हैं उदाहरण चिन्ह बोलते हैं हिंदी में। जो जो मुझे पता है वो तो मैं आपको बता देती हूँ। पेरेंथीसिस आपको पता है, ये ब्रैकेट्स होते हैं। और अपोस्ट्रोफी जो होता है वो पोजेसिव के साथ में लगता है, जिसमें हम आई थिंक वो जो इसमें लग नहीं रहा मेरे से, वो जो ऊपर कॉमा लगाते हैं ना, वो एक कॉमा जो एस लगाते हैं संबंध वाला, का के की जो लगाते हैं। और हाइफन और डैश में फर्क होता है कि जैसे अभी ग्रैंडपा हाँ वही अपोस्ट्रोफी एस। और ये जो हाइफन होता है वो छोटा होता है, और डैश होता है वो बड़ा होता है। तो अब इसमें मैंने उसको कुछ कुछ ही लिए हैं इसमें पंक्चुएशन में, क्योंकि हमारी को सारे पंक्चुएशन के मार्क्स तो पता ही है। जैसे फुल स्टॉप का सबको पता है, पूर्ण विराम का सबको पता है। अब ये जो एलिप्सिस होते हैं, एलिप्सिस क्या होते हैं, हमें अगर आपकी बहुत लंबी कोटेशन है और वो आपको अपने थीसिस में मेंशन करनी है, और वो कोटेशन इतनी पॉपुलर है कि यू नीड नॉट राइट द एंटायर, और you are not quoting the entire quotation. So what you do is you put 3 dots, and if you want to end it there, then थोड़ा सा स्पेस लगा के आप उसको थोड़ा सा स्पेस लगा के एक डॉट दे देंगे। 3 ही डॉट लगाना है, नहीं तो कई बार हम क्या देते हैं, डॉट 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 करके छोड़ देते हैं। इसमें एलिप्सिस में सिर्फ 3 डॉट लगते हैं, और उसके बाद में अगर ये 3 डॉट हम बीच में लगाते हैं, और जब अगर एंड कर रहे हैं तो हम एक फुल स्टॉप, इसको पीरियड बोलते हैं, हम वो लगा देते हैं। तो मिडिल ऑफ द सेंटेंस में जब लगाएंगे तो हम 3 डॉट लगाते हैं। बहुत लंबी कोट है, बहुत पॉपुलर कोट है, या आप उसको पूरे पैराग्राफ को कोट नहीं करना चाह रहे, तो आप वहां पर ये 3 डॉट लगाते हैं, उनको एलिप्सिस बोलते हैं।
और इंग्लिश में और अदर लैंग्वेजेस में या लिटरेचर में हम लोग क्या करते हैं, एलिप्सिस को बहुत चीजों के लिए यूज करते हैं। इसको हम पॉज के लिए यूज करते हैं, मेनली पॉज के लिए यूज करते हैं, जब हमें थॉट प्रोसेस में पॉज देना होता है। कई बार हम इसको उस वाले इफेक्ट में देते हैं कि वी डोंट वांट टू से एनीथिंग, आप खुद समझ जाओ, इस वाले सेंस में भी हम एलिप्सिस को यूज करते हैं। तो तब हम इसको 3 डॉट देते हैं। तो एलिप्सिस देखने में तो ये 3 डॉट मेथड ही लगता है, लेकिन ये बहुत मीनिंगफुल होता है। इसका ये मतलब होता है कि इट इज ओपन फॉर interpretation. Whatever conclusion you have come out with, it is open for interpretation. और या फिर आपको पूरा कोट नहीं करना है तो सिंपल सा मीनिंग है इसका कि आपने 3 डॉट लगा दिए, तो 3 ही डॉट आप कंप्यूटर के कीपैड से टाइप करेंगे, उससे ज्यादा नहीं। क्योंकि कोई भी सब्जेक्ट हो, पंक्चुएशन प्रॉपर होनी चाहिए, लैंग्वेज हिंदी या इंग्लिश की हो वो भी प्रॉपर होनी चाहिए। ऐसे ही कॉमा होते हैं। अब देखने में कॉमा बहुत बहुत सिंपल सा लगता है, लेकिन देखो पहले क्या बोलते थे कि कॉमा जो होता है उसके बाद में हम एंड नहीं लगाते हैं, लेकिन यहाँ क्या होता है, जब ये इतने सारे वर्ड्स हैं, माय हस्बैंड, डॉटर, सन, नेफ्यू, माय प्रॉपर्टी, मेरी प्रॉपर्टी, इन सब में डिस्ट्रीब्यूट होगी, डिवाइड होगी। तो जब हम हस्बैंड के बाद में तो सबको पता है कॉमा लगेगा, डॉटर के बाद में भी कॉमा लगेगा, और सन के बाद में एंड है। तो कई बार जो राइटर्स है, जो स्टूडेंट्स हैं, स्कॉलर्स हैं, वो यहाँ पर क्योंकि एंड लगा रहे हैं तो यहाँ कॉमा नहीं लगाते हैं। अगर हम यहाँ पर अगर कॉमा नहीं लगाते हैं तो सॉरी, वेट, अगर हम यहाँ पर कॉमा नहीं लगाते हैं, वेट फॉर अ व्हाइल, आई डोंट नो, आई थिंक आई हैव मिस्ड इट। अगर हम वहां पर कॉमा नहीं लगाते हैं तो उससे क्या हो जाता है कि वो जो सन और जो डॉटर होते हैं उसका क्या मतलब होता है कि वो डॉटर उस एक में होगी, दूसरे में होगी, और सन और डॉटर को एक साथ मिलेगा। आई हैव मिस्ड दैट स्लाइड समवेयर। तो उसका ये मतलब होगा कि वो सन और डॉटर उनको एक साथ मिलेगा। सन और डॉटर मतलब जो सन और सन के साथ बाद में जो लिखा हुआ था उनका एक ही हिस्सा है। ठीक है, अगर हम कॉमा लगाते हैं इसका मतलब है उनका अलग अलग हिस्सा है, अदरवाइज उनका एक ही हिस्सा है। अब ये जो यहाँ पर जो हम कॉमा लगाते हैं, यूज अ कॉमा टू सेपरेट, ये जो years लिखते हैं हम, years में हम यहाँ लिखते हैं शी टॉक टू हर हस्बैंड ऑन March 5, 2024 इन बजरंग नगर, कोटा। सबको करेंगे हम अलग अलग। और ये जो लिखा है ये सेकंड वाला देखो, आई एम as you have, ये वाला I am as you have probably noticed very nervous about it। तो ये क्या है, ये एक्सप्रेशन है, आप फ्लो ऑफ सेंटेंस को इंटरप्ट कर रहे हैं। as you have probably noticed, ये बहुत इंपॉर्टेंट डिस्क्रिप्शन नहीं है। जैसे मोहन who is blind, this is not important to read, was the only person qualified is important। तो यहाँ पर हम हमेशा जब भी सेंटेंस लगाएंगे, हम क्लॉज लगाएंगे, तो हम उनको बीच बीच में कॉमा लगाते हैं। और यही मॉडिफायर्स के साथ में होता है, मॉडिफायर्स के बिगनिंग में और मॉडिफायर्स के एंड में हमें कॉमा लगाना बहुत जरूरी होता है, नहीं तो मीनिंग तब हमारे उसमें चेंज हो जाता है। तो अब जैसे आप सेंटेंस शुरू कर रहे हैं, इफ यू आर नॉट श्योर अबाउट दिस लेट मी नो नाउ, अगर ये सेंटेंस है, इफ यू आर नॉट श्योर अबाउट दिस, तो ये क्या है, वीक क्लॉज है। और ये क्लॉज है, इसका अपना सब्जेक्ट और प्रेडिकेट है। यू सब्जेक्ट, आर नॉट श्योर अबाउट दिस ये प्रेडिकेट है। तो इफ यू आर नॉट श्योर अबाउट दिस कॉमा लेट मी नो नाउ, तो यहां पर ये वीक क्लॉज है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो हम इसके बाद में कॉमा लगाएंगे। लेकिन यहां पर लेट मी नो नाउ इफ यू आर नॉट श्योर अबाउट दिस, तो यहां पर ये क्लॉज को हमने स्टार्ट नहीं किया है सेंटेंस को, तो यहां कोई कॉमा नहीं लगेगा। लेट मी नो नाउ इफ के बाद में कॉमा नहीं लगेगा। और हमने देखा है कि हम राइटिंग्स में इतना ध्यान देते ही नहीं है कॉमा को, लेकिन कॉमा का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है आपके सेंटेंस को प्रॉपरली मॉडिफाई करने के लिए। अब जब हम कंफ्यूजन होता है, जैसे आई चूज द कलर्स रेड एंड ग्रीन
और एंड ब्लू वाज हिज फर्स्ट चॉइस। तो इसमें हमने क्या किया है, कंफ्यूजन। अगर हम करते आई चोज द कलर रेड एंड ग्रीन एंड ब्लू वाज हिज फर्स्ट चॉइस, और हम यहाँ पर कॉमा लगाते ही नहीं, तो हमें समझ में ही नहीं आता कि उसका फर्स्ट चॉइस क्या है। लेकिन ये पढ़ने के बाद हमें मालूम पड़ रहा है कि यहाँ एंड से पहले कॉमा लगा है, इसका मतलब है ब्लू वाज हिज फर्स्ट चॉइस। और जब हम कंट्रास्ट करते हैं, कंट्रास्ट और पैराडॉक्सिकल जब भी हमारे सेंटेंसेस होते हैं, जैसे दैट इज माय मनी कॉमा नॉट योर्स, तो ये कंट्रास्टिंग सेंटेंस के बीच में भी हम कॉमा लगाते हैं। अब उसके बाद में आता है कॉलन। अब कॉलन में क्या होता है, बहुत सारे आइटम्स, कॉलन होता है जो हम ये जो 2 डॉट्स लगाते हैं। जब हम ये 2 डॉट्स लगाते हैं, तो यहाँ पर मैंने स्लाइड में ज्यादा नहीं लिखा है, लेकिन आप इस चीज को ध्यान रखिए कि कई बार जो हमारे डायरेक्ट सेंटेंसेस होते हैं, जब हम किसी को कोट कर रहे हैं, तो कोट का बिगनिंग भी हम कोलन से करते हैं, उसके बाद में इन्वर्टेड कॉमास लगाते हैं। अब यहाँ तो क्योंकि हमने फॉर एग्जाम्पल नहीं लिखा है, आई वॉन्ट द फॉलोइंग आइटम्स, दैट इज अगर हम लिखते या नेमली लिखते या फॉर एग्जाम्पल लिखते, तो हम फिर कोलन नहीं लगाते। लेकिन हमने वो कुछ नहीं लिखा, तो क्या लिखा है, आई वॉन्ट द फॉलोइंग आइटम बटर शुगर एंड फ्लोर। ठीक है। और जो कोलन है ये एक बहुत इंपॉर्टेंट काम करता है आपके थीसिस में। जब हम ये करते हैं, when the second clause explains the first clause and no joining word use नहीं है, तो हम तब भी कोलन लगाते हैं। आई एंजॉय रीडिंग, तो पॉज आ गया, ज्यादा बड़ा पॉज आया, कॉमा से ज्यादा बड़ा पॉज, तो हम करेंगे, प्लीज म्यूट योरसेल्फ, प्लीज म्यूट योरसेल्फ, प्लीज म्यूट योर माइक्रोफोन्स। आई एंजॉय रीडिंग, novels by Austen are my favorite। फिर गार्लिक इज यूज्ड इन कुकिंग, फिर पॉज, इट एनहांसेस फ्लेवर, पॉज, इट एनहांसेस टेस्ट। यहाँ पर हमने क्या किया है, इस सेंटेंस को कॉम्प्लेक्स नहीं बना के, हमने इसमें कोलन लगा के, इसको डिवाइड करके, प्रॉपर पॉजेस देकर हमने इसको एक सेंटेंस बना दिया विद द हेल्प ऑफ कोलन। ये कोलन का यहाँ पर काम होता है। फिर अब ये आप बात ध्यान रखना, ये सभी स्टूडेंट्स के लिए है, कोई से भी सब्जेक्ट के स्टूडेंट होते हैं। हम कई बार बहुत एक लेंदी सा पैराग्राफ कोट करते हैं रेफरेंस के लिए हमारे थीसिस में, तो अब वो अगर 3 लाइन से ज्यादा होता है, तो आपको उसके ऊपर एक ब्लैंक लाइन छोड़नी है, उसके बाद में एक ब्लैंक लाइन छोड़नी है, और आपको उसको इंडेंट करना है लेफ्ट और राइट से 1/2 इंच आपके कंप्यूटर की टाइप। मैम स्लाइड इज नॉट विजिबल। इज इट नॉट विजिबल मैम, स्लाइड इज नॉट विजिबल। Visible. Is it visible? Yes. Visible, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. It is Yes, ma'am. visible, ma'am. Yes, ma'am. Visible, ma'am. वो किसी के साथ में प्रॉब्लम हो रही होगी, कोई आपकी खुद के में होगी, क्योंकि यहाँ से तो मुझे ऐसे लग रहा है कि विजिबल है। चलिए, अब जिनकी नहीं विजिबल है सुन लीजिए कि जब हम कोट करते हैं और वो 3 सेंटेंस से ज्यादा होता है, 3 लाइन्स लेंथ से ज्यादा होता है, तो आपको उसके ऊपर एक ब्लैंक लाइन छोड़नी है, नीचे एक ब्लैंक लाइन छोड़नी है, आपको उसको लेफ्ट और राइट दोनों इंडेंट करना है। इंडेंट का मतलब मुझे लगता है आप सबको पता ही होगा, आप इतने बड़े स्कॉलर्स हैं कि आपको दोनों तरफ से जगह छोड़नी पड़ेगी, जो आपकी प्रॉपर राइटिंग की है उसके अलावा भी छोड़नी पड़ेगी, और आपको कोटेशन मार्क्स यूज नहीं करना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि स्टूडेंट्स क्या करते हैं, जब बहुत लंबा कोड देते हैं तो उस कोड को नीचे अलग से एक पैराग्राफ में तो दे देते हैं, पैराग्राफ टाइप इंडेंट करके, लेकिन वो उसकी बिगनिंग और एंड में कोटेशन मार्क्स दे देते हैं। There you don't have to use quotation. You don't have to use quotation mark. आपको कोलन पहले यूज करना है, आपको कोलन पहले यूज कर दोगे, ये वाला कोलन पहले यूज हो जाएगा, तो कोटेशन मार्क्स को आपको यूज करने की जरूरत नहीं होगी। अब हम सेमी कोलन में आएंगे, इसको सेमी कोलन भी बोलते हैं। जो सेमी कोलन होता है ये हाफ पॉज, कोलन फुल पॉज होता है, ये हाफ पॉज होता है। तो हम कई बार सेंटेंसेस, मैं जल्दी छूटूं। आप प्लीज अपने माइक को म्यूट कर दीजिए, आपकी आवाज आ रही है, प्लीज प्लीज। Ma'am, she is not aware only. सुमन मीना जी, सुमन मीना हो गया हो गया म्यूट हो गया। Okay.
ओके अब ये सेमाई कॉलन, इसमें देखिए इसमें क्या होता है, कॉल मी टुमारो, आई विल गिव यू माई आंसर देन। तो इसमें जो पॉज था वो ये डिफरेंट नहीं है, आई विल गिव यू माई आंसर देन नहीं है, इसलिए कोलन नहीं लगेगा यहाँ पर कॉमा से ज्यादा पॉज है, बिकॉज यू आर थिंकिंग कॉल मी टुमारो आई विल गिव यू माई आंसर देन। तो यहाँ पर कंजंक्शन नहीं लगाया है, जोड़ने वाला शब्द नहीं लगाया है हमने, इसलिए यहाँ पर सेमीकोलन लगेगा। और कई बार क्या होता है कि जो कंजंक्शन से ज्वाइन करते हैं लेकिन उनमें कॉमा ज्यादा आते हैं, जैसे देखो व्हेन आई फिनिश हियर आई विल बी ग्लैड टू हेल्प यू, ये तो एक सेंटेंस हो गया। उसके बाद में हमने सेमीकोलन लगा के एक कनेक्टिव लगा दिया, एंड दैट इज अ प्रॉमिस आई विल कीप। अब देखिए अगर आप इनको बिना कॉमा के, बिना कोलन के, बिना पंक्चुएशन के यूज करेंगे तो एक तो आपका मीनिंग चेंज होगा, एक इसमें इतना सेंस नहीं आएगा और लैंग्वेज भी प्रॉपर नहीं लगेगी। तो सेमीकोलन, कोलन, कॉमा, पीरियड, कोटेशन मार्क्स, ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं जो आपको पंक्चुएशन, वो तो सभी सब्जेक्ट्स के लिए है कि आपको पंक्चुएशन प्रॉपर करेंगे तो आपकी राइटिंग में मीनिंग, ये तो आप अभी उसके बाद में खाली पीएचडी तो करेंगे नहीं, आपने तो बहुत कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स भी देना है। इंग्लिश तो एक मेजर पार्ट होता है सारे ही एग्जाम्स का। तो ये सारा जो ग्रामर का पोर्शन है ये आपके इंग्लिश के लैंग्वेज, ग्रामर के यूसेज ऑफ इंग्लिश ग्रामर, इन सब चीजों में बहुत काम आता है। मैंने जितने आपको स्लाइड्स में लिखा है इट इज ओनली अ पार्ट ऑफ इट, क्योंकि ये टॉपिक इतना लंबा है दैट यू कैन गो ऑन एंड ऑन। खाली सेमीकोलन पे ही बनाओ तो मैं आपको 15 स्लाइड्स बना सकती थी, बट देन इट बिकम्स वेरी वेरी कंफ्यूजिंग ऑल्सो, क्योंकि समझ में ही नहीं आता कि ये इंटरचेंजेबल है। इसलिए मैंने मेजर जगह पर लिया है जो आपके काम आएंगी, जहां पर इन प्लेस ऑफ फुल स्टॉप जब आपको 2 सेंटेंस लिखने हैं और आप कंजंक्शन से जोड़ना नहीं चाह रहे हैं, एंड बिकॉज बट से जोड़ना नहीं चाह रहे हैं, वहां आप सेमीकोलन दे सकते हैं। या आप 2 बड़े सेंटेंस को एंड के साथ जोड़ते हैं और एक ही सेंटेंस में उनको लिखना चाहते हैं, तब भी आप उसको सेमीकोलन में लिख सकते हैं। हाइफन होता है, हाइफन जो होता है, और डैश, डैश क्या होता है, एलिप्सिस की तरह का बड़ा होता है, डैश बड़ा होता है, हाइफन से इससे बड़ा होता है, लेकिन वो डैश काम आता है, वो भी एलिप्सिस की तरह पॉजेस के काम में आता है या फॉलोइंग है उसके काम में आता है। अब ये जब हम हाइफन लिखते हैं, हाइफन तो वो जो छोटा सा ब्रेक करने के लिए होता है। कंपाउंड वर्ड जो होता है ना, कंपाउंड वर्ड होता है वो जो दो वर्ड से बना हुआ होता है और दोनों मीनिंगफुल वर्ड होते हैं, ठीक है, तो उनको तो हम बोलते हैं कंपाउंड वर्ड्स। और जो कॉम्प्लेक्स वर्ड्स होते हैं उनको हम अलग अलग, वो भी 2 वर्ड से होता है लेकिन उनका अलग अलग कोई मीनिंग नहीं होता है, तो ये हाइफनेटेड होते हैं। जैसे आपको समझ में नहीं आएगा, इन वर्ड्स के लिए आपको डिक्शनरी यूज करनी पड़ेगी, क्योंकि इंग्लिश तो देखो हमारी लैंग्वेज है नहीं, हम तो इंग्लिश एज अ सेकेंड लैंग्वेज स्टूडेंट्स हैं, मतलब वी स्टडी इंग्लिश एज अ सेकेंड लैंग्वेज, तो इसलिए हमको बहुत बार डिक्शनरी की, प्रोनाउंसिएशन के लिए भी डिक्शनरीज की जरूरत पड़ती है। तो आपको ये देखना पड़ेगा कि जैसे आई विटनेस है, आई विटनेस एक नाउन के जैसा यूज किया है, जैसे गवाह है, तो उसको आप आई के बीच में हाइफन नहीं लगाएंगे। और आई शेडो है, दैट इज ऑल्सो अ नेम, बट दैट इज वन थिंग, आई विच इज शेडोड, मतलब वो आई शेडो एक कॉस्मेटिक है, टॉयलेटरी है, जो आप आईज पर लगा रहे हैं तो भी आप उसमें गैप दे देंगे पर हाइफन नहीं लगाएंगे। लेकिन आई ओपनर ये एक ही वर्ड होता है, आई ओपनर मतलब मेरी आंखें खुल गई, वो जो उसने किया वो मेरे लिए आई ओपनर था, मेरी आंख खुल गई, मतलब उसने ऐसा किया मेरे साथ, तो यहाँ पर ये छोटा सा हाइफन लगाएंगे। और जितने भी नंबर्स होते हैं 21 से लेकर 99 तक, जब हम उनको अपने कोर्स ऑफ राइटिंग में लिखते हैं तो हम नॉर्मली उनमें हाइफन नहीं लगाते हैं, हमें उसमें भी हाइफन लगाना होता है। 21, 11, 12, 13, 14 तो होते ही नहीं है, लेकिन ये 2 वर्ड्स होते हैं, 20-1, 90-9, लेकिन हम नॉर्मली उसको नहीं लगाते हैं। पर ये ग्रामर का रूल है दैट यू हैव टू हाइफनेट ऑल कंपाउंड नंबर्स। ये जो प्रीफिक्सेस होते हैं, उपसर्ग होते हैं, जो हम प्रॉपर नाउन के पहले लिखते हैं, अन अमेरिकन, तो इसको हम जोड़कर नहीं लिखेंगे, इनके बीच में
ब्रेक देंगे। लेकिन जब हम वॉवल्स होते हैं, यहाँ पर ये आई वॉवल है, ए ई आई ओ यू वॉवल्स होते हैं ना, तो ये एंटी एयरक्राफ्ट, एंटाई एयरक्राफ्ट या एंटी एयरक्राफ्ट, जैसा भी आप इसको प्रोनाउंस करें, ये जो आई है और ये ए है, ये दो वॉवल्स है, दोनों वॉवल्स डिफरेंट हैं, तो आप इसको बिना वॉवल के लगाएंगे। अगर दोनों वॉवल डिफरेंट है तो हम बीच में हाइफन नहीं लगाएंगे। जैसे प्रोएक्टिव में प्रो डैश, क्योंकि कई बार हम सोचते हैं इसमें हाइफन आएगा या नहीं आएगा। बेस्ट तरीका है एक प्रॉपर वेबस्टर्स की डिक्शनरी या ऑक्सफोर्ड की डिक्शनरी देखकर प्रॉपर डिक्शनरी को कंसल्ट करें, उससे मालूम पड़ेगा। ये थोड़े से रूल्स हैं कि जब दो वॉवल्स आते हैं एक साथ, वर्ड दो होते हैं, हम बीच में हाइफन नहीं लगाते हैं, या कोई प्रॉपर नाउन के साथ में कोई प्रीफिक्स उपसर्ग लगाते हैं तो हम हाइफन लगाते हैं। तो ये जो पंक्चुएशन मार्क्स है जो मैंने आपको पहले बताए, ये फुल स्टॉप और पीरियड तो सभी को पता है, इसमें तो कहीं कोई डाउट ही नहीं है कि सेंटेंस खत्म होगा। और मैं वापस से रिपीट करती हूँ कि आपको थीसिस में एज फार एज पॉसिबल सिंपल सेंटेंसेस रखने चाहिए जो इजीली मीनिंगफुल होते हैं, जिसमें मिस्टेक की गुंजाइश कम होती है। एलिप्सिस मैंने आपको बताया पॉजेस के लिए आता है या आधे कोट को लेने के लिए आता है, आप पूरा कोट नहीं करना चाहते, उसमें आपको सिर्फ 3 डॉट्स लगाने हैं। कॉमा जो है वो एंड से पहले भी लगता है, ये सेपरेटर के काम में आता है। कोलन जो है ये बड़ा सेपरेटर है जहां पर बड़ा पॉज आता है। सेमी कोलन जो है वो स्मॉल है, इट इज बिटवीन कॉमा एंड कोलन, सो यू हैव टू यूज एक डॉट और एक कॉमा। ये कोलन उसमें भी आता है जब हम एग्जाम्पल देते हैं, डू द फॉलोइंग, है ना, नेम अंडरलाइन द फॉलोइंग, तो हम कोलन लगाते हैं, हाइफन लगाते हैं। क्वेश्चन मार्क भी आपको पता है। एक्सक्लेमेशन मार्क का थोड़ा सा ये स्टूडेंट्स उसमें गलती कर देते हैं, जैसे मैं पहले बता चुकी हूँ कि जो इंटरजेक्शन के वर्ड्स होते हैं, हुर्रे, वाह, अलास, और ये जो सारे वर्ड्स होते हैं, इनमें हमें क्या करना होता है, हमें उनको एक्सक्लेमेशन मार्क में हमें जैसे अगर हम लिख रहे हैं अलास, तो हम अलास के साथ में ऐसे एक्सक्लेमेटरी मार्क लगा देते हैं। लेकिन जब हम वो लिखते हैं हुर्रे और ये सब, और जब हम सेंटेंस लिखेंगे हाउ ब्यूटीफुल, ये देखो इसमें तो हमने लगा दिया एक्सक्लेमेटरी मार्क। लेकिन अगर हमने लिखा व्हाट अ ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल साइट, अगर हमने ऐसे लिख दिया व्हाट अ ब्यूटीफुल साइट, तो यहाँ पर हम व्हाट के बाद में नहीं लगाएंगे एक्सक्लेमेटरी मार्क, हम एक्सक्लेमेटरी मार्क हम यहाँ लगाएंगे इसके साइट के बाद में। तो यहाँ पर तो ये सेंटेंस बन जाता है एक्सक्लेमेटरी, और यहाँ पर ये वर्ड हो जाता है एक्सक्लेमेटरी। और लेकिन इसके बाद में अगर जो सेंटेंस बनता है यहाँ का पर अगर हमने एक्सक्लेमेटरी लगा दिया, हुर्रे वी हैव वन द मैच, तो मैच के बाद फुल स्टॉप आएगा, तब उसके बाद में हुर्रे के बाद में एक्सक्लेमेटरी आएगा, वहां पर नहीं आएगा। कोटेशन मार्क्स को जब भी हम करते हैं, कोटेशन मार्क्स जो होते हैं वो जो उन कोटेशन मार्क्स के अंदर ही सब वो आता है, फुल स्टॉप भी उसी के अंदर ही आएगा। अगर आपने पूरा सेंटेंस लिखा, फुल स्टॉप लिखा, कोटेशन मार्क के बाद नहीं आएगा, वो फुल स्टॉप भी उसके साथ में ही आएगा। और देखो आपके थीसिस में आप कहीं से कुछ भी कोट कर सकते हैं, जितने मर्जी रेफरेंसेस ले सकते हैं, बट to avoid plagiarism, it is always best to put in inverted commas whatever you have taken. Even if there are कई बार scholars छोटे छोटे phrases ले लेते हैं, वो फ्रेजेस जो होते हैं वो इतने ज्यादा सर्कुलेशन में आ जाते हैं कि आपको लगता ही नहीं है कि वो कहीं और से हो रहे हैं। बट रिमेंबर, एज फार एज पॉसिबल, इफ यू थिंक कि वो पहले कहीं पर यूज हो चुका है, सो प्लीज पुट देम इन सिंगल कोटेशन मार्क्स। एक एक वर्ड जब होता है उनको आप सिंगल कोटेशन मार्क्स में ले सकते हो। अदरवाइज आप किसी की कोटेशन उठाते हैं तो इस जो ये ऊपर जो 66 और 99 लिखते हैं, ये पहले वाला जो 66 होता है उससे पहले हम कॉमा लगाते हैं, तभी हमारा कोटेशन स्टार्ट होता है। कई बार जब हम लंबा बोलते हैं तो वहां पर हम कोलन लगाते हैं। पेरेंथेसिस जो होता है वो ब्रैकेट्स होते हैं, ब्रैकेट्स में कई बार डेट्स आती हैं, कई बार आपके पब्लिकेशन का ईयर आता है, कभी पब्लिकेशन का प्लेस भी आता है, बहुत सारी चीजें पेरेंथेसिस में होता है। पेरेंथेसिस का मतलब होता है ब्रैकेट्स, जो ब्रैकेट्स होते हैं। अपॉस्ट्रोफी का जो एस होता है
वो अपॉस्ट्रफी का एस हम जो लगाते हैं, मेरे से इसमें आ ही नहीं रहा है अपॉस्ट्रफी एस, 1 मिनट, ये ऐसे वाला अपॉस्ट्रफी का लगता है। इसमें क्या होता है अपॉस्ट्रफी में, ये काके की बताता है, लेकिन ये अपॉस्ट्रफी जैसे हम कोई एस में एंड हो रहा है, कोई भी वर्ड अगर एस में एंड हो रहा है, तो हम जैसे ये लिख रहे हैं मार्स, तो मार्स में जब हम अपॉस्ट्रफी लगाते हैं तो हम इसमें खाली क्या लगाएंगे, वेट वन, तो हम खाली ऐसे अपॉस्ट्रफी, इसके बाद में हम एस नहीं लगाएंगे, वो ऑलरेडी एस उसके अंदर है नाम में, इसलिए नहीं लगाएंगे। और हाइफन और डैश तो मैंने आपको बता ही दिया है कि हाइफन और डैश क्या होता है। डैश जो होता है वो नॉर्मली व्हेन यू वांट टू लीव द स्टेटमेंट इन बिटवीन, वो बड़ा होता है, उसके भी बहुत सारे यूजेस होते हैं। और हाइफन, स्मॉल हाइफन हम सब जगह लगाते हैं, नॉर्मली हाइफन लगाते हैं, डैश लगाते नहीं हैं। सो that is what we have done. Now let us, 1 minute, now I am open to what all you want to ask from the lecture, and then we'll continue. If you have any doubts, you can ask me. Anybody, any doubt? Nobody has any doubt? मैम अगर हिंदी में भी करना होगा तो इस प्रकार से करना होगा? देखो, हिंदी में भी करना होता है ना, तो आपको ये तो बात ध्यान में रखनी पड़ेगी ना कि आपके जो सेंटेंसेस है वो सीधे और सरल होने चाहिए। और अगर आप लिटरेचर में कर रहे हैं तो आपको ये देखना है कि आपकी लैंग्वेज भी थोड़ी सी फ्लारी होनी चाहिए। तो उसमें आप लिटरेचर में करने के लिए आपको भी ये जो मैंने मॉडिफायर्स बताए हैं, है ना, वो मैंने आपको इसीलिए बताए हैं कि उनकी ये तो हिंदी में भी होते हैं मैम। ये भी होते हैं, और पंक्चुएशन भी होती है हिंदी में, तो पंक्चुएशन तो सेम है हिंदी में, जैसे इंग्लिश में पंक्चुएशन है वो सेम होती है। आपको जब सिनॉप्सिस और ये सब बनानी होगी तो आपको जो फॉर्मेट है वो फॉर्मेट तो पूरा आपको इसकी साइट पे मिला हुआ है ना, पूरे आपके इसकी यूनिवर्सिटी की साइट पे फॉर्मेट है। तो वो फॉर्मेट में जब हम लिखते हैं, आप किसी भी सब्जेक्ट के अगर स्कॉलर है, आप ये जान लीजिए, मैंने बहुत सारी थीसिस देखी है, इंग्लिश की भी देखी है, दूसरे सब्जेक्ट की भी देखी है। कई बार क्या होता है कि दूसरे सब्जेक्ट वाले चाहे वो हिंदी में लिखें या इंग्लिश में लिखें, वो लोग लैंग्वेज पे ध्यान नहीं देते हैं, वो सोचते हैं कि कंटेंट इंपॉर्टेंट है। तो दे शुड ऑल्सो रियलाइज दैट कंटेंट इज ऑफ कोर्स मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, लेकिन आपका कंटेंट प्रॉपरली अंडरस्टूड नहीं होगा एग्जामिनर द्वारा अगर आपका लैंग्वेज रॉन्ग है या आपने प्रॉपर तरीके से कोट नहीं किया है। तो कोटेशन मार्क्स और पंक्चुएशन और ये सब चीजें, और जो फॉर्मेट होता है, जो फॉर्मेट जिस फॉर्मेट में हम टाइप करते हैं, अभी तो क्या है, बहुत सारे स्कॉलर्स डायरेक्टली खुद ही टाइप करने लग गए हैं, किसी और टाइपिस्ट से कराते नहीं है। तो टाइप करते वक्त अभी मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि जो आप लिखते हैं, लिखना शुरू आप सीधा ही वर्ड में या जिसमें भी आपको लिखना है, सीधा आप कंप्यूटर पे ही कीजिए। उससे क्या होता है, स्पेलिंग के भी एरर्स नहीं होते हैं। नहीं तो बहुत सारी थीसिस में, चाहे वो लिटरेचर की हो, डिफरेंट लिटरेचर्स की, चाहे हिंदी संस्कृत में ही हो या दूसरे सब्जेक्ट्स की हो और लैंग्वेज हिंदी इंग्लिश हो, तो बहुत स्पेलिंग एरर्स होते हैं। कई बार उसमें इतने ज्यादा स्पेलिंग एरर्स होते हैं कि एग्जामिनर्स, क्योंकि वो क्या होता है, वो टाइपिंग एरर्स हो जाते हैं। तो टाइपिस्ट अगर एरर कर रहा है, फिर उसके बाद में आप उसकी प्रूफ रीडिंग कर रहे हैं, फिर आप उसको प्रूफ को वापस करेक्ट करके उसको देते हैं, फिर वो उसको चेक करता है, फिर आप वापस से प्रूफ रीडिंग करते हैं, उसके बावजूद भी कई बार टाइपोज रह जाते हैं। तो उससे क्या होता है कि आपका इंप्रेशन बहुत अच्छा नहीं पड़ता। ये तो एग्जामिनर को भी समझ में आ जाता है कि ये टाइपिंग एरर है, लेकिन वो टाइपिंग एरर भी नहीं होने चाहिए। उसके लिए बहुत असेंशियल है कि आप लोग सब, मुझे तो लगता है आप सबको टाइपिंग आती होगी, लेकिन बहुत असेंशियल है कि आप टाइपिंग सीखिए और आप खुद ही टाइप कीजिए। कुछ लोग जो हिंदी टाइप करते हैं वो थोड़ा सा डिफिकल्ट पड़ता है, आई थिंक कंपैरेटिवली इंग्लिश इज इजियर, बट इफ यू आर नॉट एबल टू टाइप, देन स्टार्टिंग से ही एक एक चैप्टर से ही आप उसको पहले टाइप करा के रख लीजिए, क्योंकि उससे क्या होता है, एरर होने की गुंजाइश कम हो जाती है। और सेंटेंसेस का आप उसको पढ़िए क्या, तो आप ये देखिए कि ग्रामर, चाहे आप सपोजिंगली आप
साइंस का कोई लिख रहे हैं थीसिस, उसमें भी अगर आपके सेंटेंस का फ्रेगमेंटेड होगा या जंबल्ड तरीके से जुड़ा हुआ होगा सेंटेंस, तो आप अपनी बात को पूरा, आप अपना डेटा अच्छा बना लेंगे, ग्राफ अच्छा बना लेंगे, टेबल्स अच्छे बना लेंगे, लेकिन जहां पर आप उसको एक्सप्लेन करेंगे वहां पर मात खा जाएंगे। इसलिए लैंग्वेज का इम्प्रूवमेंट बहुत ही जरूरी है, और किसी ना किसी लैंग्वेज में एक्सपर्टीज तो होनी ही चाहिए ना, चाहे वो हिंदी में हो या इंग्लिश में हो या किसी और रीजनल लैंग्वेज में हो। बट इफ यू आर राइट, आई थिंक मोस्ट ऑफ द स्कॉलर्स राइट ईदर इन हिंदी और इंग्लिश, सो इट इज वेरी वेरी एसेंशियल दैट यू शुड हैव कमांड ओवर दैट लैंग्वेज। और लैंग्वेज को सीखना ना केवल आपकी इस थीसिस के लिए जरूरी है, उसको लिखने के लिए, आप जो रिसर्च पेपर्स लिखेंगे वो जब पब्लिश होने जाते हैं उसमें भी बहुत अजीब लगता है कि अरे ये तो पीएचडी है और इसको ये लिखना नहीं आता, इसको तो इसकी स्पेलिंग नहीं आती। और स्पेलिंग क्या होती है? टाइपिंग एरर होती है कई बार। तो वो चीजें नहीं होनी चाहिए, क्योंकि बहुत पुअर इंप्रेशन पड़ता है उसका। तो जो मैकेनिक्स ऑफ राइटिंग होती है उसमें ये सारी चीजें आपको ध्यान देनी है। जैसे आप प्राइमरी सोर्स लिख रहे हैं बिब्लियोग्राफी में, तो प्राइमरी सोर्स में आपने ऊपर कैसे आइटलिक्स में लिखा है, प्राइमरी सोर्स को अलग लिखा है, सेकेंडरी सोर्स को अलग लिखा है। आपने जब कोट किया तो आपने पब्लिकेशंस का, जो आपने लेटेस्ट पब्लिश्ड बुक लेनी है उसका ईयर ऑफ पब्लिकेशन आपको सही लेना है, उसका एड्रेस, जो पब्लिशर्स है उनका एड्रेस आपको सही लेना है। तो ये सब जब आप पढ़ते वक्त ही बनाते जाएंगे, टाइप करते जाएंगे और उसको आप सीक्वेंस में करते जाएंगे, तो आपकी प्रॉब्लम्स कम होती जाएंगी, आपको बाद में ये सब काम नहीं करने पड़ेंगे। क्योंकि लैंग्वेज ही तो मीडियम है कम्युनिकेशन का। अगर लैंग्वेज पे कमांड नहीं होगा आपका, तो आपका चाहे कंटेंट कितना भी कम्युनिकेट करना चाहे, वो प्रॉपरली कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे। तो आज मुझे आपको जो टॉपिक दिया था वो मॉडिफायर्स का दिया था, कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस का दिया था, और साथ में मेरे को पंक्चुएशन के बारे में बोला था। तो मैंने उसमें से कोशिश करी कि आपको वो सारी चीजें तो समझ में आ जाए। तो अभी अगर आप मेरे को कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं, और किसी को कोई है? somebody है, बताएं किसी को कुछ पूछना है तो। मैम ये सिनॉप्सिस जो हम जमा करेंगे वो हाथ से लिख के करेंगे या प्रिंट? No, you should always, no, you should give it typed. Everything should be typed. ओके मैम। हाथ से नहीं लिखिए, टाइपिंग से ही करके देंगे, क्योंकि अब तो हाथ से लिखने का तो वो चला ही गया। हालांकि हाथ से लिखना बहुत ही अच्छी बात होती है, लेकिन अब वो क्योंकि इलेजिबल हो जाता है, पढ़ने में नहीं आता है, कभी कुछ होता है। और सबसे बड़ी बात कि हमें सॉफ्ट कॉपी होती है आजकल। तो कभी वो एग्जाम मिस्टेक निकालेंगे तो फिर वापस टाइप करवाना पड़ेगा? नहीं, ये लैंग्वेज की हाँ वो तो है, वो तो सिनॉप्सिस तो आपकी एक्सेप्ट होती। मिस्टेक किस किस्म की मिस्टेक? जैसे कैसी कभी मिस्टेक? कुछ गलतियां हो जाती है या फिर कैसी कोई मिस्टेक? कोटेशन गलत लिखने में आ जाती है। हाँ, कंटेंट का मिस्टेक या लैंग्वेज का मिस्टेक? कंटेंट का। नहीं, कंटेंट का मिस्टेक तो ऑब्वियसली वो तो जो करेक्शन बोलेंगे आपको रीसबमिट करनी पड़ती है। आपकी एसआरसी होगी, एसआरसी में जो एक्सपर्ट का पैनल आएगा वो उसमें आपसे वाइवा लेगा, आपसे पूछेगा, और आप में सजेशंस भी दे सकता है, या तो एज इट इज इम्प्रूव कर सकता है, या सजेशंस देके जाते हैं तो सजेशंस को आपको इनकॉर्पोरेट करने पड़ेंगे। तो इनकॉर्पोरेट करके आपको दोबारा बनानी पड़ेगी ना फिर तो। अच्छा, कई बार वो टॉपिक में सजेशन देते हैं, कई बार वो कंटेंट में देते हैं, कभी वो चैप्टराइजेशन में देते हैं। तो जो भी एक्सपर्ट पैनल सही समझेगा वो उसको करेगा। लेकिन कम से कम ये तो देखिए ना कि आपकी लैंग्वेज में कहीं कोई गलती नहीं होनी चाहिए। कंटेंट तो हर सब्जेक्ट का अपना अलग अलग होता है, आपकी चैप्टराइजेशन भी अलग होती है। कई बार तो ऐसा होता है कि जो फ्रेम करते हैं आप अपना टॉपिक, जो थीसिस का टॉपिक है, उसको, वो सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है। क्योंकि थीसिस का जो टॉपिक होता है उसको आपको क्या करना होता है कि जैसे हम लोग पहले बचपन में पढ़ते थे कि कोई एक स्टोरी दे दिया या एक पैराग्राफ दे दिया है प्रेसी राइटिंग में, और उसको बोलते थे गिव अ सुटेबल टाइटल, है ना, ऐसे पढ़ते थे ना हम पहले। तो वो सुटेबल टाइटल का ही आप ये समझिए कि टाइटल की, टॉपिक की इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस होती है कि वो जो 3, 4, 5 वर्ड का जो फ्रेज होता है वो डिटरमिन करेगा कि आप अपनी थीसिस में क्या लिख रहे हैं। तो उसमें अगर जरा सा भी एक वर्ड सुपरफ्लुअस हुआ या एक वर्ड इनअप्रोप्रिएट हुआ, तो बाद में जब आप इन द कोर्स ऑफ योर राइटिंग यू विल रियलाइज कि अरे मैंने तो ये टॉपिक लिया था, मैं इस वर्ड की जगह अगर ये वर्ड लिख देता तो मेरे को करने में ये इजी रहता। तो इसलिए टॉपिक
डिसाइडिंग अपॉन द टॉपिक, ये तो जैसे समझ में आ गया। मैं तो आपको इंग्लिश का एग्जांपल दे सकती हूँ, जैसे हमने जेन ऑस्टन लिया है या कोई शेक्सपियर मान लीजिए, सबको पता होगा, जैसे हमने शेक्सपियर लिया है। अब शेक्सपियर का जो हम प्लेज ले रहे हैं, उस प्लेज में जो एक पर्टिकुलर एस्पेक्ट ले रहे हैं, अगर मैं उस एस्पेक्ट की को ऊपर एक बार मैंने उसको टॉपिक में यूज कर लिया, तो मैं लिमिटेड हो जाऊंगी उसी चीज को अपने थीसिस में लिखने के लिए। तो आपको ऐसा टॉपिक फ्रेम करना है विच शुड एनकम्पास द whatever you can, maximum which you can write on Shakespeare in that one topic. अगर आप उसको बहुत लिमिट कर देंगे तो आप थीसिस में उसके अलावा और कुछ लिख नहीं पाएंगे। तो सबसे ज्यादा फोकस करिए आपके टॉपिक पे, उसके प्रोज एंड कॉन्स देखिए कि मैं ये टॉपिक ले रहा हूं तो इस टॉपिक में क्या ये चीजें, इस राइटर की ये चीजें आएंगी, ये वाली बुक्स आएंगी, ये वाली थ्योरी आएगी, ये आएगी कि नहीं आएगी। ये चीज आपको बहुत बहुत ज्यादा बाद में परेशान करेगी। और ऐसे ही जब हमने टॉपिक डिसाइड कर लिया, आप और आपके गाइड ने प्रॉपर्ली डिसाइड कर लिया कि ये टॉपिक होना चाहिए, उसके बाद चैप्टराइजेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। द नॉमेनक्लेचर ऑफ चैप्टराइजेशन, चैप्टर का नाम, कि चैप्टर आपने सही बनाए हैं कि नहीं बनाए हैं, उनका नाम। क्योंकि हर एक चैप्टर के कई स्टूडेंट्स तो बहुत सिंपल बना देते हैं कि स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन लिख दो, एक टेक्निकल का चैप्टर दे दो और लास्ट में एक समिंग अप दे दो, कंक्लूजन दे दो। नॉर्मली ऐसे ही करते हैं स्टूडेंट, लेकिन कई स्कॉलर्स ऐसे होते हैं जो उसको कोई नाम देते हैं उस चैप्टर का। तो जब आप नाम देते हैं तो आपको वो भी बहुत सोच के देना है, क्योंकि बाद में आप चैप्टराइजेशन आपको चेंज करना होता है, देन आल्सो यू हैव टू टेक परमिशन। सो दीज सिनॉप्सिस बनाना इतना डिफिकल्ट नहीं होता है, लेकिन आप ये मान के चलिए कि वो एक रफ खाका है, एक रफ फ्रेमवर्क है, जिसको आप अपने जब आपका थीसिस होगा तब आप उसको उसमें से लेंगे। तो आप बहुत ज्यादा डिविएट नहीं कर सकते आपके सिनॉप्सिस से, क्योंकि आपकी सिनॉप्सिस अप्रूव होगी, उसी के बाद में आप थीसिस लिखना शुरू करेंगे। सो व्हाइल राइटिंग सिनॉप्सिस आल्सो, प्लीज जो आप रिव्यू ऑफ लिटरेचर लिख रहे हैं, जो आप इंट्रोडक्शन लिख रहे हैं, जो आप रेलेवेंस लिख रहे हैं, इंपॉर्टेंस लिख रहे हैं, आप अपना रिसर्च मेथोडोलॉजी लिख रहे हैं, उन सब पे ध्यान दीजिए कि मुझे अपने 3-4 साल में जो मैं ये काम करूंगा, मुझे इससे बाउंड होके करना है। तो आप उसमें पहले ही फोकस कर लीजिए। तो टॉपिक को जब हम फ्रेम करते हैं, उसमें भी लैंग्वेज का काम आता है, उसमें भी पंक्चुएशन का काम आता है। आपने देखा होगा कितने टॉपिक्स में कोलन लगा हुआ होता है। तो आपको ये देखना है कि मैं कोलन लगाऊं कि कॉमा लगाऊं कि हाइफन लगाऊं, क्या लगाना है, और उससे आपको अपने टॉपिक को डिसाइड करने में हेल्प होगी, क्योंकि टॉपिक एक बार डिसाइड होने के बाद में आपको चेंज कराना मुश्किल होता है। एनीबडी एल्स वांट्स टू आस्क एनीथिंग? और किसी को कुछ पूछना है? अगर किसी को कुछ पूछना है तो म्यूट कर दीजिए, सॉरी अनम्यूट करिए अपने आप को। No, ma'am. Thank you so much. Nobody? No one has any other query? लैंग्वेज में तो आप जो लोग इंग्लिश में लिखते हैं वो ये ध्यान दे दीजिए कि इंग्लिश जो है वो हम पढ़ते हैं एज अ सेकेंड लैंग्वेज, क्योंकि इंग्लिश क्या है हमारे कंट्री में, कौन सी जो इंग्लिश होती है वो फॉरेन लैंग्वेज बहुत सारी कंट्रीज में, जैसे जापान, चाइना में उनकी अपनी लैंग्वेज होती है ऑफिशियल, तो ये फॉरेन लैंग्वेज होती है। और हमारे लिए ये फॉरेन लैंग्वेज नहीं होती है, हमारे लिए ये सेकेंड लैंग्वेज होती है, क्योंकि ये हमारे दूसरे ऑफिशियली भी यूज होती है बहुत सारी जगह पे। तो व्हेन यू स्टडी इंग्लिश, यू आर स्टडिंग इट एज English for the second language students. तो because it is not our mother tongue, for most of us it is not our mother tongue, तो हम क्या करते हैं vernacular से उसको ट्रांसलेट करते हैं। हम सोचते हिंदी में है और या किसी अपनी लैंग्वेज मदर टंग में सोचते हैं, और उसके बाद में जब हम उसको ट्रांसलेट करके इंग्लिश में लिखते हैं तो बहुत सारा मीनिंग उसमें लॉस्ट हो जाता है, और तब ये फ्रेगमेंटेड सेंटेंस या गलत मॉडिफायर्स लगते हैं। और हमें ये देखना है कि इंग्लिश को इम्प्रूव करने के लिए आपको रीडिंग करना बहुत असेंशियल होता है, और राइटिंग तो होता ही है। यू हैव टू लिसन एंड यू हैव टू रीड। कोई क्लासेस वगैरह ज्वाइन करने से ये सब नहीं सीख सकते। जितना ज्यादा आप उस लैंग्वेज में पढ़ेंगे, जिस भी लैंग्वेज को आप इम्प्रूव करना चाहते हैं, चाहे इंग्लिश चाहे हिंदी, आप जितना ज्यादा उसको रीडिंग करेंगे उतना ज्यादा आपका कमांड आएगा, आपका वोकैबुलरी आएगा। सो फॉर राइटिंग इन इंग्लिश फॉर एनी सब्जेक्ट, यू ऑल्सो हैव टू हैव a solid vocabulary,
शब्दों का ज्ञान होगा तभी आप अपने आप को एक्सप्रेस कर पाएंगे. सो वाइल एक तो आप अपना काम कर ही रहे हैं थीसिस लिखने का, लेकिन जिस भी लैंग्वेज में लिख रहे हैं उस लैंग्वेज को एक्सटेंसिवली रीड करिए. उसको रीड करने से और रीड करके जब आपके सबकॉन्शियस माइंड में बहुत सारा मैटर रह जाता है, तो आप जब लिखने लगते हैं तो आप ये ध्यान रखिए कि आप अगर कुछ कहीं से ले रहे हैं, आपके सबकॉन्शियस माइंड में भी है, प्लीज गिव ड्यू क्रेडिट. You can take from whichever source you want to, even from internet, but to avoid plagiarism, जिससे कि हम कहीं से copy paste ना करें, it is very very important, extremely important कि आप वहां पर credit दे दीजिए. जहां से आपने लिया है उसको credit दीजिए. क्रेडिट देंगे तो आप सेफ होंगे, आपका प्लेजरिज्म का फॉल्ट नहीं होगा. क्योंकि जब हम पढ़ते हैं हमारे सबकॉन्शियस माइंड में रहता है और हम वही लिखते हैं, पर लिखते वक्त ध्यान दीजिए कि ये आपके थॉट्स हैं या किसी और के थॉट्स हैं. और अगर किसी और के थॉट्स हैं तो भले ही आप उसको कोटेशन मार्क्स में मत लिखिए, पर ये लिख दीजिए कि अकॉर्डिंग टू दिस, उस पर्सन का नाम, उस पब्लिकेशन का नाम. प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू राइट दैट. दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. ऑनेस्टी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ऑफ योर राइटिंग ऑल्सो. Okay, so be very careful and all the best. If you want to ask something else, I'm still open to it. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you. ठीक है, फिर हम वाइंड अप कर सकते हैं. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. थैंक यू मैम. Thank you. Thank you, ma'am. Okay, thanks all of you. Thank you, ma'am. Thank you to the University of Thank you. India also. Thank you. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you, madam. Thank you, Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you. Thank you, ma'am. Okay, थोड़ा कर मेरी मार्निंग तो बंद. Thank you so much, ma'am. you're welcome. Thank All. you so much, All of you are welcome. थैंक यू मैम.